Hello everyone, good evening. I am Amin Joyo, Research Associate of Sindh Vyas Academy. I work in Social Sciences Department, Zabas University, Karachi. Today we are gathered here for a panel discussion. And first of all, I want to let you know about Sindh Vyas Academy, that we have a wonderful library in which we have several books on the topics of history of Sindh, like culture of Sindh, art of Sindh, architecture of Sindh, irrigation system of Sindh, and many more subjects which are related with Sindh. So I will welcome you there, and I'll present you this brochure of my Sindh Vyas Academy. Now, while moving further in this wonderful panel discussion, first of all, I would like to introduce Ms. Afia Salam. Uh, Her education is Masters in Geography from University of Karachi, and her professional capacities are journalism. She's a copyright editor, media development specialist in climate change, environment, gender-sensitive reporting, and media ethics, development sector, and practitioner. Further, she's a teacher as well at Karachi University. Please welcome. And this university is, sorry. Please join the stage. Then we have a renowned Sindhi scholar, Mr. Nasir Memon Saab. He's very well known to Sindhi society all over the Pakistan. And his short intro is Mr. Nasir Memon is the chairperson of NHN, and which is the full form is the National Humanitarian Network. Further, he have worked in different NGOs and different disciplines since many decades. So I welcome him, and please join the stage with us. Now we have Mr. Hassan Abbas with us, Dr. Hassan Abbas. This is not the first time that I'm introducing him and hosting him. He came here back in 2017, and he's the #1 hydrologist of Pakistan. Mr. Hassan Abbas has earned his PhD in hydrology and water resources from Michigan University, US, and his work, he's the water specialist and sector, and 3 continuous decades he's doing the research work in this field. I welcome, sir. If you can hear me, please accept my apologies for the late. Sir, can you hear me? Thanks for inviting me. So, thank you, sir. Welcome. We all welcome you here once again. Now, this is our practice that we start our events with the Y of Shah Latif or some music. In this case, I request Mr. Naeem Shah. Please welcome him. He's a professional singer and is working here in Zabas University Media Science Department, and he will sing a beautiful song. Please welcome him for his encouragement. अच्छा, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज़ नईम शाह, और यहाँ पे मैं ऑडियो स्टूडियो ऑफिसर हूँ मीडिया साइंस डिपार्टमेंट में. और उसके अलावा मेरा म्यूज़िक से कुछ इस तरीके से ताल्लुक़ है कि मैं अराउंड 15 साल से मैं बैंड्स के साथ, म्यूज़िशंस के साथ मैं काम कर चुका हूँ. तो जो म्यूज़िक मैं करता हूँ वो ज़्यादातर तो सूफ़ी और सिंधी पोइट्रीज़ पे है. तो आज का जो टॉपिक है हमारा, तो आज मैं आपको एक शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की वाई सुनाऊँगा सुर ससी की दास्तान से, क्योंकि ससी हमारी एक वुमेंस का एक बहुत ख़ास किरदार है, ख़ास रोल है उसका. तो लेट्स स्टार्ट विद ससी पुनू. सॉन्ग नेम इज़ आयल आयल नसरे पुनहल कांपो. ठीक है. सो होपफुली कि आप लोगों को सिंधी में समझ में आ जाए.
हो लतीफ होशल सिंधड़ी आबाद हुजई लतीफ हो आयल आयल नसरे पुनल खापो आयल आयल नसरे पुनल खापो आयल आयल नसरे पुनल खापो आयल आयल नसरे मुंहिंजो पेच पुन्हू असी मुंहिंजो पेच पुन्हू असी सरतियूं की मसरे आयल आयल मसरे पुनल खापो आयल आयल मसरे पुनल खापो आयल आयल मसरे नीरे सा नीरे गारे सा नीरे सा नीरे गारे सा नीरे सा सुते अस निंद्रन भाग जी सुते अस निंद्रन भाग जी किस्मत केद करे आयल आयल नसरे पुनल खापो आयल आयल नसरे पुनल खापो आयल आयल नसरे नीरे सा नीरे गारे सा नीरे सा कंडा मुंह पेरन तोड़े लख लगन आंगिर आंगूठे न मुड़े छिपूं पेर छिनन वींदस काण पुनूअ जुती जात न पाया जुती से पाईंदियूं हो जिनी पेर पिरीं लाथियूं सब पिरीं ससीअ सुपरीं खे वींदस काण पुनूअ जे वींदस काण पुनूअ जे डूंगर पेर डरे आयल आयल नसरे पुनल खापो आयल आयल नसरे पुनल खापो आयल आयल नसरे नीरे सा नीरे गारे सा नीरे सा नीरे गारे सा नीरे सा जी लतीफ तुझी
सारा Can he sing one more if you are giving permission? नो परमिशन सही सही थैंक यू सो नाइस Thank you, Shah Sahab. Such a sweet voice. He has a melodious voice. He has. Okay, well, now I would like to call Dr. Riaz Sheikh Sahab. Actually, I forgot his name. Please come on the stage and join us for this panel discussion, sir. Please. Actually, sir always keep behind and he does not come on the stage, but this time I request you. Well, I forgot one thing about Dr. Hassan Abbas, that he's a renowned scholar and expert on water resources. And basically, he was the first Pakistani who was appointed as the first UNESCO chair for integrated water resource management. So please have a clapping for Dr. Hassan Abbas as well. Now, I would like to request our Vice Presidents, HR. Our Vice Presidents, HR, Mr. Imtiaz Qazi Saab, to come and formal welcome to our audience and speakers. Sir, please have a few words. So when I was coming here, I kind of expected and apprehended that I'll be given the same treatment. So I jotted down few points before coming here. So please bear with me. The study of rivers and basins is a very, very interesting study. Long time back, I saw a documentary on BBC. A documentary on BBC, and that documentary was about the Chung. Okay. All right. I'll talk loudly. So I saw this documentary which was about great 5-6 rivers coming from the roof of the world, which is Tibet. And it was a great documentary showing River Indus, showing Yamuna and Ganga, and the Yellow River going to China, and the Mekong River which goes to Vietnam. So 5-6 great rivers coming from the roof of the world. And then, it intrigued me, and then I saw this, the great rivers of Russia, Volga and Dnieper, and another one, Dniester perhaps. But all these great rivers and their basins which flow into Caspian Sea and the Black Sea. So the purpose of giving this small point was that it's very intriguing to see these river basins. Now, coming back to the Indus Basin. Indus Basin by itself is very, very intriguing and very interesting study if you see the map and the 5 rivers, the 6th river, which is Indus River, and then the Kabul River. So if you see the map, you are really intrigued by the beauty of this whole system. My experience with Water and Power Ministry and with the Indus Water Commission and with negotiations with India has been very interesting. Interesting in the sense that when we went to India as part of the Indus Water Commission and we spoke about the distribution of water and the problems, most of the arguments which Pakistan advanced vis-a-vis India as lower riparian were exactly the same that normally Sindh advances against Punjab. Almost the same. And it was very fascinating to see how this thing works. The Indus Basin Treaty
is one of the best treaties in the world. The test of this treaty is that it has survived 4 wars. In comparison to the 1991 Accord, the Water Accord, the Water Accord is only 2 pages. And the Indus Basin Treaty is so detailed and so comprehensive. Now, coming to the issue of the 6 canals, which are, as we hear, being proposed, I believe 1 or 2 are already sanctioned, like Rainy Canal and Kachi Canal. But the other canals, if they are being proposed, is an issue that is a very, very serious issue. And that's a very emotive point. Water is an emotive point between countries, between provinces. So we only hope and expect that the province of Sindh would never ever agree to this kind of arrangement, and that the Indus water is not diverted even a drop to any other province. There are 2-3 matters about which we understand that we have no compromise. The Indus water, we have no compromise on that. The language, Sindhi language, we have no compromise on that. And Sindh's population, we have no compromise on that. So we are here to listen to the luminaries on water and water, and we hope to learn a great deal from them. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Kaisab. So actually, once I was a salesman and I was selling the water, then we put a slogan on that bottles that water is life. And in fact, really, water is life. Today's topic is impact of canals on Indus River, Indus Delta, and these are the panelists. They will discuss, and Dr. Hassan Abbas will participate all the way from Lahore. Now over to Ms. Tabassum Khoso. She will conduct the session further. Please. Welcome her. मुझे ख्याल में माइक की ज़रूरत कोन्हे मूंखे अस्सलाम वालेकुम एवरीवन I am Tabassum Khoso, member of WAVE, Women Action Forum. And first of all, I would like to call senior member Atiya. She will introduce will give a little introduction about the WAVE, and then we will conduct our session. So Atiya, time. मेहरबानी तबस्सुम वेव यहाँ पर बहुत सब पुराने चेहरे और पुराने लोग हैं, तो मेरा ख्याल है कि वेव का अलीफ से लेकर तारीफ़ करवाना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अभी जो नईम शाह ने एक वाई गाई ससी के हवाले से, तो वेव का ससी से बहुत कहानी और उसके दास्तान मिलती जुलती है। ससी के साथ भी एक हादसा पेश आया, पुनूल चले गए, एक कोई इवेंट पेश आया, उसके बाद ससी घर से निकली। तो वेव के साथ भी बिल्कुल ऐसे हुआ था कि जब वेव ऐसे नहीं ख्याल आया था ख़वातीन को कि हमें कोई कुछ ना कुछ करना चाहिए, और फिर हुआ ये कि ज़िया के दौर में जो एक अंधुनाक जो एक बहुत ज़्यादा जुल्म फैला जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर हर तरह से, और उस वक्त जो है सफ़िया बीबी, ये पंजाब और सिंध में मिले जुले वाक़यात थे। ये पंजाब की खातून थी सफ़िया बीबी, वो अंधी नाबीना खातून थी, उसको बाप और बेटे ने जो है वो रेप किया था। तो उस पर सज़ा ये सुनाई गई थी कि ये अपना गवाह नहीं पेश कर सकती, तो इसका अपना कसूर होगा। कराची में फिर फ़हमीदा अलाबख्श का वाक़या पेश आया था, जिसने अपनी मर्ज़ी से शादी की थी। तो जब ये दास्तान ये जुल्म की बातें इस कदर बढ़ गईं कि ख़वातीन जो एक दूसरे को वैसे ही जानती थीं, दोस्त थीं या किसी न किसी हवाले से जानती थीं, वो सब ने एक दूसरे से कहा कि हमें बस कुछ करना है, क्या करना है किसी को नहीं पता था। और फिर वो शिरकतगाह के ऑफ़िस में जमा हुई और वहाँ बैठकर ये बात हुई कि हमें इस हालत में, इस सूरत हाल में
चुप नहीं रहना, बस हमें इतना पता है हमें करना क्या है, उस पर बात होगी। और उसके बाद फिर वहाँ पर जो है ये तय पाया कि वुमेन एक्शन फोरम बनाया जाए। हुमैरा रहमान भी मौजूद है, नाम उन्होंने तजवीज़ किया था, अनीस हारून, हिल्डा और हमारी बहुत सारी सीनियर ख़वातीन हैं जो उसमें शामिल थी। और उसके बाद फिर जो वुमेन एक्शन फोरम की तश्कील हुई। और उसके बाद जो पहले एजेंडा थे उन्होंने जो लिए थे कि फौरी तौर पर उन कानून को चैलेंज करना, ये एक प्रेशर ग्रुप था। और उसके बाद तब से लेकर 81 से लेकर वो मुसलसल वेफ काम करता आ रहा है। उसके चैप्टर्स हैं जो पहले 4 चैप्टर होते थे, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और अब हैदराबाद में और पेशावर में मुख्तलिफ़ जगहों पर अब 6 चैप्टर हैं। 6 चैप्टर हैं हमारे ना। तो अब और उसमें यह था कि हम औरतों के इश्यूज़ को अवलियत देते हैं, लेकिन बात ये थी कि क्या करें कि हर इशू औरत से रिलेटेड है। तो जैसे पानी का अभी अगर पानी का इशू है वो भी औरत से ही रिलेट है, क्योंकि अगर गुर्बत आती है तो कृष्ण चंद्र की जो कहावत है कि अगर गरीब होगा तो उसके घर की औरत और ज़्यादा गरीब होगी। तो इस तरह से हर इश्यूज़ से लड़ते लड़ते हम वेफ यहाँ तक काम कर रही है। और 81 से मुसलसल वेफ की एक ये खूबी है कि अपनी रफ्तार से इस हवाले से मुसलसल काम करती रही है। और एक मज़ाहमती ग्रुप है जो कि हमेशा मज़ाहमत में साथ आया है। तो बस ये मेरा ख्याल काफ़ी है। थैंक यू। साईं सदाई करी मथे सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी। सवाल ये उठता है कि वेफ पानी के मसले की तरफ क्यों मुतवज्जा हुई। वेफ जाहिर सी बात है हर बाशऊर कौम, हर बाशऊर इंसान को अपने धरती से, अपने मुल्क से, अपने एरिया से मोहब्बत होती है। ऐसे ही वेफ की बाशऊर औरतों को अपने मुल्क, अपने सिंध से, अपनी धरती से मोहब्बत थी। जब उन्होंने देखा कि 8 जुलाई को ऐवान सदर से एक हुक्म सादिर हुआ कि 6 कैनाल सिंध को चीर फाड़ कर दूसरी धरती को जाके आबाद करेंगे, हम ये सवाल करते हैं वेफ वाले कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक लोग एरिया को बर्बाद करके दूसरे को आबाद किया जाए? क्या एक ही मुल्क में ऐसा हो सकता है? इन सब सवालों के जवाब लेने के लिए हमने सोचा कि हम अपने माहिरीन को बुलाएं और उनसे समझें कि आखिर ये माजरा क्या है। आखिर एक ही रात में 8 जुलाई को एक हुक्म सादिर हो जाता है, क्या जमहूरी ममालिक में ऐसा पॉसिबल है? सवाल ये उठता है कि क्या सिंध के लिए ये हर वक्त, हर बार एक नया हुक्म सादिर होता है? कभी ज़मीनों का इशू, तो कभी हमारे आइलैंड्स चले जाते हैं, तो कभी क्या। तो क्या हम आज हम पानी के इशू को समझने के लिए हमारे साथ इंट्रोडक्शन हो चुका है। तो मैं सबसे पहले मेरा सवाल नसीर साहब से है। नसीर मेमन साहब, आपकी नज़र में ऐवान सदर से इंडस डेल्टा पे 6 कैनाल बनाने का फैसले को आप किस नज़र से देख रहे हैं? उस फैसले पर अमल दरामद हो गया तो उससे सिंध पे ज़रई मालियाती कैसे असर पड़ेंगे? आपके ख़्याल में ओवरऑल सिंध की सूरत हाल क्या होगी? उस फैसले के पीछे कौन से सियासी खेल और मफादात कार फरमा हैं? कौम परस्त जमायतें और दीगर सियासी पार्टियां, सिविल सोसाइटी ने तो उस फैसले के ख़िलाफ़ शदीद रद्द अमल ज़ाहिर किया, मगर सिंध हुकूमत की तरफ से उस पर या तो खामोशी है या रद्द अमल इतना कमज़ोर है कि बस उसके खामोशी ही समझा जाए। तो मैं आपके ख़यालात जानना चाहूँगी कि आप क्या समझते हैं और आप हमें समझाएं कि ये 6 कैनाल आखिर माजरा क्या है। माइक फिट है, ऑलराइट, तो ज़रा मुझे फॉर्मेट भी समझा दें कि ये क्वेश्चंस की सीरीज़ होगी, किस तरह होगी? दिस इज़ द क्वेश्चन। अच्छा क्योंकि ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है कि मैं सोच रहा था उसके बाद कौन से क्वेश्चन होंगे। ऑलराइट, ठीक है। हाउ मच टाइम आई हैव? सिर्फ 10 मिनट।
9:30 अच्छा आई था कि मैंने बहुत ओके आई ट्राई टू सबमिट अप इन विद इन 10 to 15 जी सॉरी कुछ बात अच्छा काफ़ी डिस्ट्रैक्शन है यार हाल में अगर दोस्त ज़रा सुन लें ओह माय गॉड जी जी ऑलराइट ओके हाँ थैंक यू अच्छा वैसे तो मुझसे ज़्यादा क्वालिफाइड एक और दोस्त एहसान लगारी भी सामने बैठे हैं मैं चाहता कि वो इस पे बात करते बट वी शुड राइट ऑलराइट ओके अच्छा दोस्त अगर आप थोड़ा सा सुन लें क्योंकि बातचीत करने आए ना बाकी चीज़ें सेकेंडरी हैं फोटोग्राफी वगैरह हो जाएगी या आप पूरा कर लें मैं फिर बाद में बात कर लेता लगा लें हाँ you're dealing. हो गया? Should we start now? अच्छा, now I request everybody to please. I need your attention, sir. I need your attention. I beg your attention. क्योंकि I'm here to say something. अच्छा, thank you, Wave. Wave had always been an inspiration. ये तो क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए कि Wave क्यों करा, Wave क्यों ना करे. मतलब what is there which is not related to women and is Wave only for women? I don't think. All right. So let's admire and appreciate कि ये बहुत अच्छा आपने इवेंट ऑर्गेनाइज किया and look at the दिलचस्पी का लेवल कि you are short of chairs, which shows your integrity, your compliments कि आप इतने अच्छे इवेंट्स कराते हैं. Honor for me to be here. जो केनाल्स की बातें हैं मेरे कुछ नोट्स से शेयर करूंगा लेकिन बुनियादी जो आपने कहा पहला सवाल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि ये ऐवान सदर से एक मीटिंग होती है उसके मिनट्स आते हैं और उसमें कहा जाता है कि ये जो 6 कैनाल हैं इनको फौरी तौर पर इस पर काम करें या व्हाटएवर बहुत ही अर्जेंसी सी उसमें दिखाई गई है. फर्स्ट आई डोंट थिंक ऐवान सदर हैज़ टू डू एनीथिंग विथ वाटर. दिस इज़ नॉट ऐवान सदर्स जॉब राइट. ऐवान सदर का कॉन्स्टिट्यूशन में रोल इज़ प्रीटी मच डिफाइंड लेकिन हम सब ने चूँकि तय किया हो कि अपने अलावा बाकी दुनिया के सारे काम करेंगे अपने नहीं करेंगे तो ऐवान सदर ने भी यही करना था. इसका फोरम काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बनता है. पानी इज़ अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट सो वाट एवर इज़ टू बी डिबेटेड ऑन वाटर शुड गो टू द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट और अगर नहीं तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है प्रोविंस की असेंबलीज़ हैं पार्लियामेंट है आई मीन देर आर फोरम्स और फिर ये स्कीम की शक्ल में अपने प्रोसेस से आ सकते हैं. फिर इर्सा बैठा है देर आर रेलिवेंट फोरम्स लेकिन somebody probably thought के टॉप से आना बेहतर. उन्होंने तय किया हुआ है कि सब कुछ ऊपर से ही होता है तो उन्होंने ये रास्ता चुना. तो फर्स्ट मेरा ख्याल है कि ऐवान सदर इज़ नॉट द प्लेस एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ नॉट द पर्सन एक्चुअली इज़ नॉट द ऑफिस टू इशू सच इंस्ट्रक्शंस. अब उन 6 कैनाल्स में क्या है ज़ाहिर है वो एक उससे ह्यूज उसकी एक काइंड ऑफ रिजेंटमेंट जनरेट हुई और उसका नतीजा इस बेवकूफ़ी के काम का इन्होंने ये किया कि इसमें वो 3 कैनाल जो मुशर्रफ के दौर के थे जिनका ताल्लुक भी नहीं बनता था वो मिला के उन्होंने 6 कैनाल का पहाड़ भी बना दिया. उनको अकल होती तो उसका जिक्र भी ना करते. फॉर एग्जांपल मैं आपको क्विकली वो जो 6 कैनाल बताऊं एक चश्मा राइट बैंक कैनाल है CRBC जो कि चश्मा बैरेज से निकलना है उसको पंजाब से गुजर के खैबर पख्तूनख्वा के और वो काफ़ी पुराना कैनाल है. उसका एक बड़ा हिस्सा तमीर भी हो चुका है और उसका अब जो एक फ़ेज़ है जो DI खान में जहाँ से लिफ्ट इरीगेशन होनी है वो नॉर्मल अपने पेस पे चल रहा था. पता नहीं क्यों उनको शौक हुआ कि उसका जिक्र किया जाए तो वो भी उन्होंने अपने एक लाइबिलिटी क्रिएट की. मैंने वो चीज़ें जो मतनाज़ा नहीं है कमाल ये है यहाँ के पॉलिसी मेकर्स का तो मतनाज़ा चीज़ें तो बनाते हैं जो गैर मतनाज़ा है उनको भी मतनाज़ा बनाने का हुनर उन्होंने कमाल कर लिया है. ये चल रहा था कैनाल इस पर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं था वो अपने शेयर का पानी ले रहे हैं. अब सारे लोग कह रहे हैं कि यह क़यामत आ रही है क्या हो रहा है. इसी तरह कच्ची कैनाल जो कि तोसा बैरेज से निकलना है पंजाब से और उसने इरीगेट करना है बलूचिस्तान को पार्टली पंजाब को भी करना है बट लार्जर पार्ट बलूचिस्तान में करना है
वो भी पुराना कैनाल है मुशर्रफ के दौर का, उसका भी शेयर बलूचिस्तान के पानी से जाना है। उसके और इश्यूज़ हैं, उसका वाटर विड्रॉल का इशू है सच नहीं, उसके और इश्यूज़ हैं, उसकी ड्रेनेज के इश्यूज़ हैं। मैं अभी उसमें जाना नहीं चाहता, मैंने एक आर्टिकल में डिटेल में लिखा भी है। बट दो इशू के इंडस से पानी उसके लिए एक्स्ट्रा लिया जाएगा, आई डोंट थिंक दैट इज़ द इशू इन दैट केस। इश्यूज़ और हैं उसके। रैनी कैनाल है, वो भी मुशर्रफ के दौर का, वो भी एक फरमाइशी कैनाल था जिसका पानी की सेंक्शन ही नहीं है 91 के अकार्ड में। वो ज़बरदस्ती उस दौर में बनाया गया घोटकी की तरफ निकालने के लिए, फिर कहा गया ये फ्लड कैनाल है, फ्लड आएगा तो उसमें पानी आएगा। इस साल अली खरीफ में जब शार्टेजेस चल रही थी तब भी उसमें ऑफिशियली 500 और अनऑफिशियली शायद 1500 क्यूसेक तक पानी जा रहा था। तो वो भी पुराना कैनाल था। अब उसका वो फ़ेज़ 2 बनाना चाहते हैं, उसके ऊपर डेवलपमेंट का काम है, जो कि सिंध गवर्नमेंट उनको पहले ही कह चुकी है कि भाई उस दौर में आपने एक वहाँ से कर्फ्यू नाफिज करके ये कैनाल बना लिया था, हम तो फंडामेंटली कैनाल की एलोकेशन ही नहीं है, तो उसकी फर्दर डेवलपमेंट पे क्या काम करना है। चौथा है कैनाल जिसे थर कैनाल का नाम दिया गया है, जो रैनी कैनाल से निकलना है, माना उस कैनाल से निकलना है जिसके लिए पानी नहीं है। आप ज़रा विजन तो देखें ना, कितना उस पेरेंट कैनाल का पानी नहीं है, वहाँ से कैनाल निकलनी है। रेत की कैनाल शायद निकाल सकते हैं। इट्स ए डिसेप्टिव थिंग कि आप थर के लोगों को कहें कि आपके पानी के लिए हम कैनाल ला रहे हैं, पर्पस कुछ और होगा। सो वो कैनाल भी सिंध गवर्नमेंट ने प्लेनली पहले ही CCI में लिखा हुआ था कि भाई इस कैनाल के जो जहाँ से निकलना है कैनाल वहाँ ही पानी नहीं है, उसको ही हम डेवलप करने के हक में नहीं है, तो यहाँ से कौन सी नई कैनाल निकल सके। जो मेरे नज़र में दो मोस्ट सीरियस इश्यूज़ हैं कैनाल्स के, वो चुबारा कैनाल है जो कि ग्रेटर थल कैनाल से निकलना है, और दूसरा चोलिस्तान स्कीम है। चोलिस्तान कैनाल ये कहते हैं, कीप इन माइंड कि ये चोलिस्तान कैनाल एक कैनाल का नाम नहीं है। देयर इज़ वन स्कीम विच इज़ ये चोलिस्तान जो कैनाल है, चोलिस्तान फीडर कैनाल, कभी इसको चोलिस्तान फ्लड कैनाल कहते हैं, कभी इसको पेरिनल कैनाल बना देते हैं। बट वो कैनाल खुद फ़ेज़ 1 है ऑफ सिमालर चोलिस्तान स्कीम, यानी चोलिस्तान के भी सिमालर चोलिस्तान स्कीम, उसका भी फ़ेज़ 1 है, और ग्रेटर चोलिस्तान स्कीम उससे कहीं ज़्यादा बड़ी है, जिसमें नए डैम छोटे बनने हैं, उसके और कैनाल्स का नेटवर्क बना है। ह्यूज 48 लाख के करीब उसके ऊपर एक्सपेक्टेशन है उनकी कि ज़मीन आबाद होगी। तो उसके अंदर फिर एक और स्कीम है सिमालर चोलिस्तान, जिसका ये फ़ेज़ 1 है। और इस फ़ेज़ 1 के कैनाल में भी सिर्फ चोलिस्तान फीडर कैनाल नहीं है, इसके कंपोनेंट्स अगर आप उसके डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे, जो CDWP में वर्किंग पेपर प्रेजेंट हुआ, मैं उसको रेफ़र कर रहा हूँ, मेरे पास PC1 का डॉक्यूमेंट नहीं है। तो फीडर कैनाल जहाँ सलेमान की हेड वर्क्स जो कि सतलज रिवर पे है, काश के वो मैप होता हम यहाँ लगा देते, बट जस्ट इमेजिन इट कि सतलज रिवर से वो निकलना है कैनाल, और नीचे जाके फोर्ट अब्बास तक वो कैनाल पहुँचेगी। कोई 100 आई थिंक 170 किलोमीटर और समथिंग उसकी लेंथ है, 176, थैंक यू। और वहाँ से एक और मरोट कैनाल, इज़ मरोट द राइट वर्ड? या ओके, मरोट कैनाल निकलनी है, वो भी कोई 120 किलोमीटर के करीब लंबी कैनाल है। वो आगे वहाँ से फिर चश्मा चोलिस्तान को सैराब करने के लिए नहरें निकलेंगी। उन तमाम नहरों के नेटवर्क की मजमूई लेंथ 452 किलोमीटर्स बनती है। सो इट्स वेरी स्प्राउड सिस्टम जिसकी बात की जा रही है, इट्स नॉट जस्ट वन कैनाल कमिंग। और इसके साथ और क्या है वो मैं लिंक करूँगा कि सिंध के खदशात कहाँ हैं, वो उस दूसरे पार्ट से लिंक होते हैं। वो क्या है कि इस ऊपर 3 लिंक कैनाल, पंजाब में जब इंडस बेसिन ट्रीटी हुआ उसके बाद जो कंपनसेशन आई, तो पंजाब में एक नेटवर्क ऑफ लिंक कैनाल्स बना था। एक रिवर से दूसरी को फीड करना है, फिर जो ड्राई बेड है रिवर के, 3 रिवर रावी और ब्यास और सतलज हमने इंडिया को दे दी, तो अब उनके जो ड्राई बेड हैं उनको इरीगेट करना है। तो इधर से पानी उठा के वहाँ पहुँचाएँ, वहाँ से उठा के यहाँ पहुँचाएँ, यहाँ से उठा के इधर पहुँचाएँ, और फाइनली उधर पहुँचाएँ। पूरा नेटवर्क है। तो 3 ऐसे लिंक कैनाल्स हैं जो कि झेलम से पानी रिवर से कनेक्ट करेंगे, चनाब से, झेलम और चनाब रिवर एक कनेक्शन ये है, और वो कहलाता है रसूल कादराबाद कादरपुर लिंक कैनाल, एक ये है। दूसरा फिर एक और कैनाल वहाँ से निकलना है जो कि
चनाब के पानी को रिवर में रावी में ले जाएगा। फिर तीसरा रिंग कैनाल है जो रावी से सतलज में ले जा सके। इन तीनों कैनाल्स की कैपेसिटी इन्हांसमेंट भी इसी प्रोजेक्ट का पार्ट है, जो कि डिबेट में नहीं आ रही। अब ये अपस्ट्रीम पे 3 कैनाल्स हैं, उसके एंड पे सतलज रिवर है। बिल्कुल ईस्टवर्ड चोलिस्तान की तरफ जाएं तो जो आखिरी रिवर लगेगी वो सतलज लगेगी। वहाँ से सुलेमान की हेडवर्क से ये कैनाल निकलेगी, वो फर्दर साउथ टुवर्ड्स साउथ ऑफ पंजाब में, और ये इरिगेट करेगी बालपुर और बहालनगर डिस्ट्रिक्ट्स को। और जो इसका सिर्फ फेज़ 1 है, उसके अंदर उससे जो लैंड इरिगेट होनी है वो 4.5 लाख एकड़ से, 455,000 टू बी प्रिसाइज। और जो फिर उसका फेज़ 2 जब बनेगा तो वो अनदर 7.5 लाख एकर्स उस पे इरीगेट होने। तो कुल मिला के कोई 1.2 मिलियन एकर्स को इरीगेट करने की ह्यूज स्कीम है। कहाँ से होनी है? सतलज रिवर में होनी है। सतलज क्या है? सतलज आप बेच चुके हैं, एक ड्राई बेड रिवर है प्रैक्टिकली स्पीकिंग, जिसके ऊपर आपका राइट भी नहीं है, आपके पास पानी भी नहीं है, आप बेच चुके हैं। उस पे पूरा ये सिस्टम बनना है। जब उसका शुरुआती डॉक्यूमेंट जिसकी वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट इरसा से लिया गया, जहाँ पे सिर्फ एक एहसान लगारी साहब थे जिन्होंने उसको रजिस्ट किया कि ये इरसा का काम नहीं है कि वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट बांटे, इरसा का काम है 91 के अकार्ड के अंदर जो पानी की एलोकेशन उसकी रेगुलेशन करें, एंड दैट्स इट। तो वो बाकी मेंबरान ने, यू नो ऑल द पॉलिटिक्स बिहाइंड, उन्होंने एंडोर्स किया। और वो इस साल जनवरी था एहसान साहब, दिस ईयर जनवरी था, जनवरी या फरवरी, आई गेस इट वाज जनवरी, जब वो वाटर सर्टिफिकेट इशू भी कर दिया गया। उसमें क्या था, अगर वो आप उस वक्त जो डॉक्यूमेंट सामने आया था, मैंने वो देखा था, तो 8 हफ्ते ऐसे हैं जुलाई अगस्त जिसमें मैक्सिमम फ्लोज 4000 क्यूसेक काइंड ऑफ इस तरह है। सितंबर के पहले 10 दिनों में भी, क्योंकि वो 10 डेली सिस्टम होता है, हफ्तों पे वो नहीं जाते। मैंने वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एज अ डिफरेंट कैलेंडर, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होता है फॉर एवरी 10 डेज। तो उसमें ये था कि इन 2 महीनों में बेताशा पानी वहाँ से डाइवर्ट होगा, बाकी महीनों में सच पानी उसका रखा ही नहीं हुआ था। शुरू में कहा गया कि ये फ्लड कैनाल है, तो हम जैसे अनपढ़ लोगों ने पूछा कि भाई ये फ्लड तो 2 महीने होता है, कभी कभी नहीं भी होता है, तो फिर क्या किया जाएगा? आप तो 4.5 लाख एकड़ और फिर अनदर 7.5 लाख एकड़, तो 12 लाख एकड़ ज़मीन आप आबाद करेंगे, अल्लाह ताला के रहम करम पे रखेंगे कि जब बारिश वो देगा तो आबाद होगी, नहीं होगी तो फिर आप छोड़ देंगे 12 लाख एकड़। मैंने वाटर राइट्स बनेंगे, वाटर कोर्सेज बनेंगे, पूरा सिस्टम बनेगा ह्यूज, आप उसके ऊपर कल्टीवेशन करेंगे, लोगों का लाइवलीहुड क्रिएट होगा, मार्केट्स क्रिएट होंगी, और जिस साल बारिश नहीं होगी आप कहेंगे सॉरी पानी नहीं है, आप इस साल घर जाएं, छुट्टी करें। इज़ दैट पॉसिबल? इज़ इट सेंसिबल? मैं पॉसिबल, इज़ इट सेंसिबल? ये शानदार प्लानिंग के ऐसे आला दिमाग आपको इंशाल्लाह इसी मुल्क में मिलेंगे। आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत है हमारे पास, और कोई चीज़ अब एक्सपोर्ट करने के लिए शायद रही भी नहीं, ऐसे आला ब्रेन्स हम एक्सपोर्ट करें। बाद में पता चला कि जब CDWP के पास ये दस्तावेज आती है तो उसमें ये पेरिनल कैनाल दिखाया गया कि ये तो 12 महीने चलेगा। अच्छा जी, 12 महीने जब चलेगा तो कहाँ से चलेगा? पानी तो आपका 91 के अकार्ड में गिवन है ना, हर सूबे का अलोकेटेड है, और आप कहते हैं कि एग्जिस्टिंग कमिटमेंट्स में से आप हार्डली अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं, पानी की शॉर्टेज होती हैं। हर साल आप डेटा उठा लें, एहसान साहब बैठे हैं, कोई साल ऐसा नहीं है कि आप रबी और खरीफ की शॉर्टेजेस ना सुने। इस साल के बिगिनिंग में तो शायद 33% की शॉर्टेज प्रिडिक्ट थी, जब इससे पहले कि ये ज़रा हाई फ्लोज आते, 33% की फोरकास्ट थी कि शॉर्टेजेस होंगे। तो एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ आपके पास परपिचुअल शॉर्टेजेस हैं, हर साल आप शॉर्टेजेस रिपोर्ट करते हैं, इमरजेंसी जैसा माहौल पैदा कर देते हैं, रोटेशंस और राशनिंग हो रही होती है पानी की, वहाँ आप एक और पेरिनियल कैनाल लाते हैं 12.5 लाख एकड़ ज़मीन आबाद करने के लिए, और फिर आप कहते हैं कि उसके लिए पेरिनियली सारा साल पानी चाहिए। तो लॉजिक क्या कहती है? लॉजिक कहती है कि फिर उसको पंजाब के शेयर से पानी मिले, क्योंकि वो पंजाब में लोकेटेड है, हर प्रोविंस को अपने ही हिस्से का पानी मिला हुआ है, और वो अलोकेशन है 10 डेलीज़ की उन कैनाल्स के ऊपर जो 91 के अकार्ड के वक्त मौजूद थे, वही टेबल्स मौजूद हैं। आप जब कोई नई स्कीम ले जाएंगे तो इसेंशियली आप बताएं फिर उनको कि हम यहाँ से जो 10,000 क्यूसिक लेते थे, हम यहाँ से 3,000 इधर डाइवर्ट कर देंगे। आप ये नहीं कह सकते कि ये 3,000 इधर नया खुलेगा और पिछलों का जिक्र ही ना करें, ये नहीं हो सकता कि पिछले गायब कर दें
वो आना लाइटर नोट, एक साहब होते थे कैंटीन से मुफ्त में खाना खाते थे, जैसे बहुत सारे लीडर करते, तो वो खाना वाना खाया तो उसने वेटर को कहा कि भाई लिख दो, उसने कहा सर पिछले वाले, उसने कहा मिटा दो। तो इन्होंने भी कहा कि नया पानी नहीं है, वो लिख दो, पिछले वाला कहाँ से आएगा वो मिटा दो, यही तरीका है। सो नोबडी नोज कि ये पानी कहाँ से आएगा। अच्छा, फिर आते हैं इस पे कि सो व्हाट डज इट लॉजिकली मीन। अगर आपके अपने पास पानी नहीं है तो ये जो लिंक कैनाल्स की चेन है उसका एक लिंक फिर झेलम से अगर आप पानी इधर ले जाते हैं तो झेलम के बेसिन को फीड करने के लिए फिर आपका पानी इंडस से आता है। चश्मा झेलम लिंक कैनाल, तोसा पंजनद लिंक कैनाल, ये दो लिंक कैनाल्स हैं जो इंडस से पानी। तो अरिथमेटिक क्या कहती है, अगर आप अपने हिस्से के पानी में एक्स्ट्रा 4000 क्यूसिक ऐड कर रहे हैं और आपके पास आइडियली उस साल में शार्टेजेस भी ना हो, तब भी 4000 क्यूसिक की एडिशनल डिमांड तो क्रिएट कर दी ना आपने, तो वो कहाँ से आएंगे। तो लॉजिकली हम समझते हैं कि उसका सोर्स फिर इंडस ही बचता है और तो कहीं से नहीं आएगा। यू कांट, वो क्या क्रिएट करेंगे पानी, मैन्युफैक्चर करेंगे, क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे। और अगर उसके ऊपर कोई कहे कि जी ये ग्राउंड वाटर से आएगा फॉर एग्जांपल, तो फिर उसकी ग्राउंड वाटर के हाइड्रोलॉजी की पूरी आप स्टडी ले आएँ, ज़रा एविडेंस के साथ बताएं कि ये इतना पानी है यहाँ से निकलेगा, जो कुछ भी है फिर आप, लेकिन वो स्कीम में गायब है, कहीं उसका जिक्र नहीं है। मैं प्रिज्यूम भी नहीं करना चाहता क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा, यू हैवंट मेंशन्ड इट। पता नहीं आपके पास शायद 10 तरबेला डैम उसके नीचे हो, बट आपने उसका तस्करा नहीं किया उस दस्तावेज में, विच इज़ दी रेफरेंस डॉक्यूमेंट, क्योंकि वो गवर्नमेंट के अप्रूवल उस पर हो रही है। दूसरा क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल आपके पास चलें, वो तो एक क्वेश्चन रह गया कि आप पेरिनल चलाएंगे, और मैं उस क्वेश्चन पे वापस आता हूँ कि जब आप फ्लड के ऊपर इतनी बड़ी एग्रीकल्चर करेंगे, मैं फॉर अ वाइल पंजाब के फार्मर के साथ सिंपैथाइज कर रहा हूँ कि आप उसको 12 लाख एकड़ ज़मीन जो भी है आबाद करेंगे और उनको आप हर 2 साल के बाद बता रहे होंगे कि फ्लड नहीं है, पानी नहीं है। आप बड़े ईमानदार हैं, आप इंडस से पानी नहीं चुराते, मैं आप पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता। मैं पंजाब के उस गरीब हारी और आबादगार के बिहाफ पे आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आप उसको कहाँ से पानी देंगे। उसे आपने लैंड डेवलप कराई, उसे आपने नेटवर्क बनवाया, कितने खर्चे होते होंगे लैंड को डेवलप करने में। और फिर अगर वो 211 बिलियन रुपीस का प्रोजेक्ट है तो चलें, वो भी तो पंजाब का टैक्स पेयर देगा ना। हर पंजाब के एक एक शहरी को ये सवाल उठाना चाहिए था, मैं उनके बिहाफ पे उठाता हूँ। आई ओन द होल कंट्री, चलें। किसी के पास कोई उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये कैसे होगा। एनीवेज, अब आते हैं इस पे कि सिंध को कंसर्न इस वजह से है प्राइमरीली कि चूंकि ये वायबिलिटी नहीं बनती, टेक्निकल वायबिलिटी नहीं है इस कैनाल की, बिकॉज ऑफ द amount of water which is available in the system based on the historic record। और इसलिए हम समझते हैं कि जब आप 3 लिंक कैनाल से फिर आप मंगला से पानी निकालेंगे, वो एक लिंक कैनाल के थ्रू आप चनाब में ले आएंगे, चनाब से उसको रावी में ट्रांसफ़र करेंगे इन अ ड्राई ईयर में कराऊँ, क्योंकि मंगला में पानी स्टोर्ड होगा, फिर आप लॉजिकली वहाँ से टेप करेंगे, वहाँ से आप चोलिस्तान ले जाएंगे। आपने ऊपर से पानी डाइवर्ट कर दिया तो झेलम का जो डाउन स्ट्रीम है पंजनद की तरफ नीचे, वहाँ की शार्टेज आप फिर कहाँ से पूरी करेंगे। अगर आप ऊपर वालों को पानी देंगे तो नीचे शार्टेज होगी। दिस इज़ वेरी सिंपल, देयर इज नो रॉकेट साइंस इन दैट। पानी तो वही है। जब सिंध को यह कंसर्न है कि उस वक्त जब आप पानी ऊपर से उधर डाइवर्ट कर देंगे, नीचे शार्टेज होगी, तो फिर आप चश्मा झेलम लिंक कैनाल को खोलेंगे, फिर आप तोसा पंजनद कैनाल को खोलेंगे और वहाँ से पानी नीचे के डेफिसिट को वहाँ से कंपनसेट करेंगे, बिकॉज देयर इज नो अदर सोर्स एट ऑल। कहीं और सोर्स किसी का जिक्र नहीं है। अच्छा, इस पे अब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल सिंपल आपके 4000 क्यूसिक निकल गए, और ये जहन में रखिएगा कि ये सिर्फ फेज़ 1 है, फिर फेज़ 2 है, फिर एक और जलालपुर कैनाल अप्रूव्ड है इसी सिस्टम के अंदर, वो अलग सिंध ने CCI में चैलेंज किया हुआ है, और बहुत सारी चीज़ें, ग्रेटर चोलिस्तान स्कीम आपकी पेंडिंग है। तो स्कीम सिर्फ एक ना बताएं कि 4000 क्यूसिक का मसला है, आप 20 मील्स में बता के, अगर किसी के जेब में 10,000 रुपये हैं और आगे 3 चेक पोस्टें और भी, और एक वाला कहता है मैं आपसे कोई जुल्म नहीं करूंगा, सिर्फ 1500 रुपये आपसे छीनूंगा, तो वो भी बताए ना आगे 3 चेक पोस्टें और भी हैं, वहाँ भी मुझे 2-2 हज़ार रुपये ऐसे ही देने हैं। हर कोई कहेगा मैं थोड़ी आपसे पूछ रहा हूँ, मैं तो आपसे सिर्फ अपने हिस्से के 2,500। एंड ऑफ द डे यू हैव एन एम्प्टी पॉकेट। सो सिंध का कंसर्न है कि इन दैट सेंस होगा ये कि ये जितनी डाइवर्शन आप अप स्ट्रीम पे करेंगे इन न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए, ये इवेंचुअली सिंध के डाउन स्ट्रीम का फ्लो को टैक्स करेंगी। और आपके पास फ्लड, ये शायद तासुर देते हैं 2022 की फ्लड दिखा के। फॉर एग्जाम्पल सतलज के लिए एक बंदे ने मुझसे आर्गूमेंट की, जी पिछले साल सतलज में बहुत फ्लड आई थी और बहाल नगर में तो लोग डिस्प्लेस भी हो गए थे। येस हो गए थे,
लेकिन जहन में रखिए कि वो कहाँ से आई थी, सतलुज इज अ ड्राई रिवर। वो अपस्ट्रीम पे इंडिया के बाखड़ा और पोंग डैम्स भर गए थे, उन्होंने 1 लाख क्यूसिक दोनों से रिलीज़ किए थे बिकॉज उनके डैम भर गए थे, वो पानी नीचे आया था और वो फ्लो सतलुज में 35 ईयर्स के बाद इतना फ्लो आया है। ये नहीं है कि हर साल पानी आ रहा होता है, 1 in 30 ईयर्स का फ्लो था वो। तो नो इडियट इवन वुड ट्राई टू प्लान ऑन समथिंग विच इज एक्सपेक्टेड इन once in 30 years. Some idiots will. Well, super ones. अब जब ये पानी आप डाइवर्ट कर देते हैं, अब आपका दूसरा जो पार्ट है, इसका जो थीम है आपका, कि फिर डेल्टा हैज़ टू पे द कास्ट। अल्टीमेटली एनी डाइवर्शन डन एट अप स्ट्रीम, इवन वो सिंध में हो रही हो, मैं अगर डेल्टा के ब्याह पे बात करता हूँ, आप कल सखर से एक्स्ट्रा पानी बहा लें, आप कल गुद्दू से एक्स्ट्रा पानी बहा लें, या कोटड़ी के बैरेजेस से अप स्ट्रीम से कैनाल से पानी डाइवर्ट कर लें, एंड ऑफ द डे डेल्टा हैज़ टू पे इकोलॉजिकल कॉस्ट। है टाइम? नहीं है? टोटल खत्म? सो लेट मी, इसलिए मैंने पहले टाइम पूछा, आपने कहा अनलिमिटेड। चले, सो एक पार्ट कम अज़ कम हो गया कि नाउ आई ट्राई टू एक्सप्लेन एटलीस्ट के सिंध के कंसर्न्स क्या हैं, डेल्टा पे इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, ये आफिया के हवाले करते हैं। अच्छा, मेरे हवाले जो डॉक्टर हसन इतने सब्र से बैठे हुए हैं जी। हाँ, हसन साहब तो बहुत बड़ी बातें करेंगे ना, बाकी आप मैं छोटी-छोटी बातें करूँगी। ठीक है। Suleiman for Punjab is as deficient as Kotri is for Sindh. Okay. जो अल्लेडी पुट्टी से कमान एरिया है साउथ पंजाब की, सुलेमान की, वो भी सफर करे। Not only the people who will be establishing new land, but जो जिनकी already कमान established है, वो भी सफर करे। Absolutely. Thank you. हसन साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी जी बिल्कुल। और मैं आपसे बहुत माजरत खा हूँ, आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा। हसन साहब, आपसे मेरा सवाल है कि आपके दरियाओं पे जो रिसर्च है और आपकी जो समझ है, आपके नुस्खा निगाह है, उससे आप सिंधु दरिया से निकलने वाले कैनाल्स के जो मामला है, आप उसको कैसे देख रहे हैं? क्या अगर ये कैनाल्स का मंसूबा मुकम्मल हो गया तो उसका मुस्तकबिल में सिंध पे क्या असरात मुरतब होंगे, और खुसूसन इंडस डेल्टा के मुस्तकबिल को और सिंध के ज़राअत और मामूलियात के निज़ाम पे और उसके अवाम पे क्या असरात पड़ेंगे? जी थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैं आपके फोरम का और इसके बाद जो भी सी मेमन साहब ने बहुत ही सेहत से गुफ्तगू की और बहुत हमें एजुकेट किया कि ये कैनाल किस तरह से बन रही है, क्या इनकी ज्योमेट्री है, क्या कुछ हुआ है, तो मेरे ख्याल में उन्होंने बहुत अच्छी बैकग्राउंड सेट की है और सब लोगों को उस एक अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे ले आए हैं कि अब हमें पता है कि ये कौन सी कैनाल से क्या बात हुई है, कहाँ से निकल रही हैं और इसमें से उनके बेसिकली क्या कंसर्न है। तो इस पर मैं सारी बातें जो है वो कर दी, जो जिससे एक बैकग्राउंड और बेस सेट हो गया और इससे हमारे लिए फर्दर बात करना बहुत आसान हो गया। अच्छा, मैं जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल ताल्लुक है, तो मैं ना तो सिंध को रिप्रेजेंट करता हूँ, ना मैं पंजाब को रिप्रेजेंट करता हूँ, ना ही मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं एज ए साइंटिस्ट हाइड्रोलॉजिकल टर्म्स में इंडस बेसन को रिप्रेजेंट करता हूँ कि इंडस बेसन में ये जो भी इस तरह की इंटरवेंशंस हो रही हैं, ये 6 कैनाल्स तो आज बन रही हैं, इससे पहले सिर्फ पाकिस्तान में 52 कैनाल्स बन चुकी हैं। इसके साथ हमारे हमसाए हैं भारत में, उन्होंने भी बेशुमार कैनाल्स इधर बना रखी हैं और उसी पे कोई ट्रीटियाँ भी हम लोगों ने कर रखी हैं। लेकिन इन तमाम ट्रीटी से, इन तमाम इंटरवेंशन से जब बात हम डेल्टा की करते हैं, तो हर ट्रीटी, हर कैनाल, हर नदी नाले ने, हर इरिगेशन स्कीम ने अल्टीमेटली डेल्टा को डैमेज किया है। तो अगर हम रिवर सिस्टम की बात करें, इंडस बेसन की बात करें, तो बेसन की जो इंटेग्रिटी है उसको जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं, अभी जिस तरह सी साहब ने कहा कि जी हर पोस्ट के ऊपर वो 10-10 रुपए ले रहे हैं तो आखिर में आपकी जेब खाली हो जाती है। तो ये हर प्रोजेक्ट जो बना है, और ये 200 साल से ये प्रोजेक्ट बन रहे हैं,
इसमें कभी भी बेसन लेवल की अप्रोच को नहीं देखा गया। हर प्रोजेक्ट ये कहता है कि जी बस इतना सा नुकसान होगा, इतना सा होगा, करते करते वो प्रोजेक्ट जो है वो 60-70 बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन गए हैं और हर प्रोजेक्ट को आइसोलेशन में देखा जाता है। तो वो जो एक सिस्टम अप्रोच है वो इस बेसन से मिसिंग रही है 1850 से लेके अभी तक। और चले 1850 में तो इस सिस्टम अप्रोच की शायद हमें ज़रूरत ही नहीं थी, आबादी भी बहुत कम थी, टेक्नोलॉजी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, और वो थे भी कॉलोनियल रूलर्स, उनका तो इस खित्ते के साथ कोई वो ताल्लुक ही नहीं था सिवाय इसके कि जहाँ पे उन्होंने अपनी हुकूमत कायम करके इधर के रिसोर्सेज को उधर शिफ्ट करना था, कॉलोनियलिज्म का पुराना मॉडल। लेकिन 1947 के बाद भी हम उसी मॉडल को आगे लेके चले। 1960 में हमने वो ट्रीटी की जिसको अनफॉर्चुनेटली उसके बारे में बड़ा गलत तासुर है कि ये बहुत अच्छी ट्रीटी थी। मेरा एज ए साइंटिस्ट उसके बारे में ये तासुर है कि इंडस वाटर ट्रीटी इज द मोस्ट अनसाइंटिफिक ट्रीटी एवर साइंड एट दिस स्केल बिटवीन टू कंट्रीज। इतनी अनसाइंटिफिक ट्रीटी वाटर के ऊपर आज तक पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। यानी इस ट्रीटी ने 3 दरिया मुकम्मल बंद कर दिए, आज तक किसी ट्रीटी ने दरिया बंद नहीं किए। इस ट्रीटी ने 4 गंदे नाले मान लिए कि उनका गंदा पानी, जिसमें ना उस पानी के गंद के ऊपर कोई कदगन है, ना उसके तादाद, उसकी क्वांटिटी के ऊपर कोई उसकी वो रोक टोक है, वो ड्राई बेड्स में आएंगे रावी और सतलुज के। और ये दोनों मुल्कों ने ट्रीटी में मान लिया कि हम इसमें गंदगी डालेंगे। ये क्या ट्रीटी है? तो बहरहाल मैं ट्रीटी की बहस में भी नहीं जाता, मैं वापस कैनाल्स के ऊपर आ जाता हूँ कि अब ये जो 6 कैनाल्स बन रही हैं और इनमें से 1-2 कैनाल जिनका जो है वो इस वक्त ज़्यादा कंसर्न है, और जो सिंध और पंजाब की जो वाटर डिस्प्यूट है उसको वो हवा दे रही हैं। मेरे ख्याल में ये बात ये कैनाल्स और ये प्रोजेक्ट सोचने से पहले हमें जो एक चीज़ सोचनी थी जो हमने नहीं सोची, और वो ये कि सबसे पहले हम ये कैनाल्स बना क्यों रही हैं, और इसके पीछे जो मकसद है वो बड़ा नेक है। और मकसद ये कि हमने 2 काम करने हैं। एक, हमने अपनी फूड सिक्योरिटी को मज़ीद मुस्तहकम करना है ताकि पाकिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत ना हो। इस वक्त पाकिस्तान बाय द वे फूड सरप्लस में कंट्रीज़ में शुमार होता है, लेकिन आने वाले वक्तों में जो इस वक्त हम फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं और जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ रही है, हमें ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करना होगी। तो बहुत अच्छा मकसद है, हम फूड सिक्योरिटी के लिए हमें कुछ ना कुछ करना है, और फूड सिक्योरिटी बगैर एग्रीकल्चर के नहीं हो सकती और एग्रीकल्चर बगैर पानी के नहीं हो सकता। तो इसलिए हमने एग्रीकल्चर करनी है, फूड सिक्योरिटी के लिए हमने एग्रीकल्चर करनी है, और एग्रीकल्चर के लिए हमने कहीं ना कहीं से पानी का इंतज़ाम करना है। दूसरा जो मकसद इसका है वो ये है कि क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है और पाकिस्तान के लिए ये आसान है कि वो अपने एग्रीकल्चर के एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाए और यहाँ के लोग ऐसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करें जिनको हम एक्सपोर्ट करके ज़र मुबादला कमा सकें। अब ये 2 मकासद हैं, फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स। इसको करने के लिए हमने जगह जो है उसका इंतखाब किया, ऐसी जगह जहाँ पे पहले से एग्रीकल्चर नहीं हो रहा। चोलिस्तान में हमने जगह देखी, हमने उसको कहा कि जी हम इतने एकड़ हम यहाँ पे आबाद कर सकते हैं। हमने कुछ और जगहों पे भी, हमने बलूचिस्तान में जगह देखी, हमने सिंध में जगह देखी, जिधर जिधर हमने जगह देखी जिसको आबाद किया जा सकता है, हमने कहा कि हाँ भाई हम ये जगह जो है इसके ऊपर मज़ीद अपनी फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स के लिए इस जगह को डेवलप करेंगे। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और इस कॉन्सेप्ट से एटलीस्ट मुझे किसी किस्म का कोई रिजर्वेशन नहीं है। और दूसरी बात कि अगर आप आज की मॉडर्न साइंस के ऊपर आ जाएं तो इस इतने बड़े खित्ते के बीच में इतने बड़े बड़े जहाँ पे दरिया चल रहे हों, इतना अच्छी जहाँ पे धूप निकलती हो, जहाँ इतनी अच्छी सॉइल्स हों, वहाँ पे अगर आप इस किस्म की इंटरवेंशन का सोचते हैं तो आप कोई गलत नहीं कर रहे। हॉलैंड की मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ। हॉलैंड का साइज़ जो है हमारे ये डिस्ट्रिक्ट थर पार्कर से छोटा है और उसकी जो एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट्स हैं
वो पाकिस्तान से ज़्यादा हैं, और उसमें जो दरिया चलते हैं वो इंडस के 5वें हिस्से के बराबर है। तो साइंस के साथ अगर आप चलें तो आपके पास पानी भी बहुत है, आपके पास सॉइल्स भी हैं, आपके पास सनलाइट भी है, आप तो ये काम कर सकते हैं। लेकिन क्या हमने वो जो 1850 में जो की टेक्नोलॉजी जो इस मुल्क में नाफिज हुई थी या इस खित्ते में नाफिज हुई थी कॉलोनियल रूलर्स की तरफ से, हमने आज भी उसी टेक्नोलॉजी के साथ चलना है? 1850 की टेक्नोलॉजी, वही डैम, वही बैराज, वही वाराबंदी सिस्टम, वही केनाल पटवारी, वही लड़ाइयाँ, वही मारकुटाइयाँ, हेड वाला फार्मर, टेल वाला फार्मर, सिंध, पंजाब, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, क्या आज भी हमने उसी मॉडल के ऊपर चलना है? मेरा तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि मैं इंडस बेसिन की इस तबाही को, जो कि गलत डेवलपमेंट मॉडल से शुरू हुई 1850 से, और वो आज भी आप उस मॉडल को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया में इतनी एडवांस्ड इरिगेशन टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, इतनी एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, जिनमें आपकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है, आपका एनवायरनमेंट भी ठीक रहता है। बल्कि आप तो इस वक्त आपके पास, अगर आप इस स्केल के ऊपर, यानी 7 लाख एकड़ के ऊपर, 4 लाख एकड़ के ऊपर इतनी बड़ी स्कीम अगर आप प्लान कर रहे हैं, तो आपके पास तो इस वक्त एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस स्कीम के बीच में वो मॉडर्न मेथड्स एक दफ़ा ला के यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर दें, तो उसके बाद में जो आपके पुराने सिस्टम जहाँ जहाँ पे चल रहे हैं, उधर भी लोग इस चीज़ पे कन्विंस हो जाएंगे कि जी मॉडर्न तरीके से, बगैर दरिया को ख़राब करने के, बगैर मछली और मेंढक को का माहौल ख़राब करने के, बगैर लड़ाई करने के, आप बेहतरीन जो है वो ग़िज़ा प्रोड्यूस कर सकते हैं, बेहतरीन एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो वो डेमोन्स्ट्रेशन का मौका आपके पास है। आप बजाय कि उसके बीच में वही पुराना मॉडल लाएं जिस मॉडल से लड़ाई होती है। देखिए, इस मॉडल से लड़ाई होती है। मैं इस मॉडल के इसके खिलाफ हूं क्योंकि ये मॉडल जो रिवर से पानी को डाइवर्ट करने का मॉडल है, ये मॉडल लड़ाई प्रोड्यूस करता है। क्योंकि जैसे ही आप ये काम करते हैं तो अपर राइपेरियन जब डाइवर्ट करता है तो लोअर राइपेरियन सफर करता है, और अपर राइपेरियन जो है वो एक पावर की पोजीशन में होता है बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अपर, और लोअर राइपेरियन जो है वो सफर करता है बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग लोअर। अब इसमें चाहे सिंध और पंजाब हो, चाहे हिंदुस्तान और पाकिस्तान हो, और चाहे एक हेड का फार्मर और टेल का फार्मर हो, भले सिंध में हो, भले बलूचिस्तान में हो, भले पंजाब में हो, ये मॉडल थ्रू आउट आपके मुआशरे को लड़ा के रखता है। आप लोअर राइपेरियन, पाकिस्तान लोअर राइपेरियन है इंडस बेसिन में, पाकिस्तान अफगानिस्तान का लोअर राइपेरियन है, चाइना का लोअर राइपेरियन और इंडिया का लोअर राइपेरियन। हमें तो वो इकोनॉमिक मॉडल्स वाटर इकोनॉमी के इन्वोक करने हैं जिसमें लोअर राइपेरियन जो है वो पावरफुल होता है और अपर राइपेरियन उसकी पावर से फायदा उठाता है और उसकी पावर का मरहून मिन्नत होता है। हम बीइंग लोअर राइपेरियन आज भी गीत गा रहे हैं उस इंडस वाटर ट्रीटी की के जिसने अपर राइपेरियन को पावरफुल बनाया, और हम अपने मुल्क में भी वही मॉडल चला रहे हैं जो सिर्फ अपर राइपेरियन को फेवर करता है और लोअर राइपेरियन को जो है ना उसके रहमो करम पे छोड़ देता है। मेरी एक बड़ी डिटेल टॉक है, अभी पिछले हफ्ते ही हुई है इधर ब्लैक होल के ऊपर, उसमें मैंने पूरा वाटर इकोनॉमी पे बात की है। मुझे नहीं समझ आ रही कि इतने अच्छे हमारे पास ब्रेन्स इस वक्त बैठे हुए हैं जिन्होंने ये सोचे हैं, स्कीमें सोची हैं कि भाई हम किस तरह से एग्रीकल्चर को आगे लेके जा सकते हैं, हम फूड सिक्योरिटी कैसे कर सकते हैं, लेकिन जब उन्हें ये बताया जाता है कि भाई आपके पास मॉडर्न मेथड्स भी हैं। केनाल तो बेसिकली मेसोपोटामिया में आज से 10,000 साल पहले इजाद हुई थी कि रिवर से पानी डाइवर्ट करके किसी खेत में ले जाओ। आप मेसोपोटामिया के इस 10,000 साल पुराने मॉडल को जो फिरौन ने 6,000 साल पहले मिस्र में अपनाया था और फिर अंग्रेज ने 200 साल पहले इधर इंडस बेसिन में लगाया था, आप आज भी उससे आगे नहीं जा रहे। आपके पास पाइप्स आ चुके हैं, आपके पास पंप्स आ चुके हैं, आपके पास मॉडर्न मेथड्स आ चुके हैं, और फिर वो जगह जहाँ पे इरिगेशन नहीं हो रही, जहाँ पे आप मॉडर्न फार्मिंग करना चाह रहे हैं, आप वहाँ पे मॉडर्न तरीके से पानी को क्यों नहीं लेके आते? तो बेसिकली मसला मेरे हिसाब से ये इंडस बेसिन का ज़्यादा बड़ा मसला है
मैं इस चीज़ से को डिनाई नहीं करता कि ये इंडस डेल्टा का भी मसला है, सिंध का भी मसला है, लेकिन इसमें मैं साथ आपको ये भी बताऊं, ये पंजाब का भी मसला है। ये सिर्फ सिंध का ही मसला नहीं है, सिर्फ डेल्टा का ही मसला नहीं, ये पंजाब का भी मसला है। क्योंकि जिस तरह से अभी आप लोगों ने, नसीर साहब ने मेंशन किया कि जब आप झेलम से पानी को डाइवर्ट करके इस तरफ निकालेंगे तो उधर से 4000 नीचे वाला कैसे पूरा होगा? तो वो तो पंजाब का एरिया, और पंजाब का फार्मर भी अगर आप उससे जाके मिलो तो वो परेशान है। वो भी कह रहे हैं कि यार मुझे तो टेल के ऊपर पानी नहीं मिलता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पंजाब में हर टेल वाला फार्मर जो उसको भी पानी मिल रहा है। पंजाब में भी आधे से ज्यादा फार्मर जो है उनको ऊपर वही है कि हेड वाले ने पानी निकाल दिया, टेल वाला उनकी मरूने मेहनत है। तो ये मॉडल तो पंजाब में भी थ्रू आउट है, वहां पे भी पानी के झगड़े होते हैं, पानी पे लड़ाइयां होती हैं। तो जो पंजाब का फार्मर है वो भी इस वक्त स्पेशली टेल एंड वाला फार्मर, और स्पेशली ये जो आपके साउथ पंजाब, ये चोलिस्तान के एरिया का फार्मर, फोर्ट अब्बास का फार्मर, मिरोट का फार्मर, 9R 6R पे बैठा हुआ फार्मर, उसकी टेल पे बैठा हुआ फार्मर, डूंगा बूंगा हरुणाबाद का फार्मर, ये सारे साउथ पंजाब के फार्मर इस बात पे शदीद, इस वक्त अगर आप वहां पे जाके कुछ सोशल सर्वे करें तो मेरी जो उनके साथ इंटरेक्शन और ऑब्जर्वेशन है उसमें वो शदीद इस बात पे तजब्जुब का शिकार हैं कि भाई हमें तो टेल पे पानी नहीं आज तक पहुंचा, तो ये चोलिस्तान में कहां से पानी आ जाएगा? तो एक तरह की रिजेंटमेंट है उनकी, लोकल्स की रिजेंटमेंट है इस बात पे कि जो जगह आबाद नहीं है उधर तो आप आबाद करने के लिए पानी आप बंदोबस्त कर रहे हैं, लेकिन जो जगह जहां पे कैनाल नेटवर्क बना हुआ है, जिधर लोगों को आपने बसा दिया है, लेकिन वो कस्मे पुसरी का शिकार है कि उनको उधर पानी नहीं पहुंच रहा। पहले उनका हक बनता है कि पहले उनका हक बनता है जो अभी आए भी नहीं। तो ये सारी चीजें जो है ये सिर्फ सिंध और पंजाब का मसला नहीं है, ये पूरे बेसन का मसला है। और कुछ ऐसे हालात जो है अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया में भी हैं। अगर उधर भी आप पढ़ें कि राजस्थान कैनाल के साथ में क्या क्या वाकयात हुए हैं, क्या क्या ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई हैं, तो वहां पे भी ये सिलसिला इसी तरह से चल रहा है। तो मेरे ख्याल में अब हमें मिल के इंडस बेसन को एज ए बेसन, एज एन इंटीग्रेटेड यूनिट सोचना होगा। अगर हम अपने छोटे छोटे साइलोज में बैठ के अपनी अपनी बात करते रहें तो मेरे ख्याल में हम इस बेसन को मजीद नुकसान पहुंचाएंगे। अ सिस्टम अप्रोच इज द वे टू गो, और यही मेरा इसके ऊपर नुक्ता नजर है। और मैं बिल्कुल भी इस हक में नहीं हूं कि इस दरिया से जो पहले ही ओवर डाइवर्टेड है, ओवर डैम्ड है और ओवर डिवाइडेड है, इसके बीच में मजीद डिवीजन्स, मजीद डाइवर्जन्स और मजीद डैमिंग की जाए। ये इस चीज का सिस्टम मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस चीज को हमने बतदरीज खत्म करना है, और इसको खत्म करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करना है कि इसके ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स क्या हैं और वो कैसे काम करते हैं। क्योंकि हमारे एक बदकिस्मती ये भी है कि हमारे फार्मर ने आज तक कोई ऑल्टरनेट सिस्टम देखा ही नहीं, इसलिए उसको जब कोई चीज बताई जाती है तो वो कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हें तो ग्राउंड रियलिटीज का ही नहीं पता। वो हमें ये इल्जाम देता है कि तुम्हें ग्राउंड रियलिटीज का नहीं पता, जबकि वो अपने गांव के अलावा उसने कोई तरीका नहीं देखा अभी तक कि किस तरह से जो है वो बाकी दुनिया चल रही है। जिसने कभी आज तक जहाज नहीं देखा उसको नहीं पता कि गाड़ियां उड़ भी सकती हैं। तो बात यह है कि हमने अपने लोगों को भी एजुकेट करना है और उनको डेमोन्स्ट्रेट करना है, और इससे अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन, क्योंकि ये एक बड़े कैनाल कमांड जितना एरिया है, ये 1 मिलियन एकड़ से ऊपर का एरिया है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो अगर इसके ऊपर एक मॉडर्न सिस्टम डेमोन्स्ट्रेट हो जाता है वाटर मैनेजमेंट का, तो ना सिर्फ ये कि लोगों को जो इस वक्त इश्यूज हैं वो नहीं होंगे, बल्कि वो सिस्टम आपको मौका देगा, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को मौका देगा कि वो बतदरीज ये सिस्टम उन एरियाज में भी लेके आए जहां पे इस वक्त इरिगेशन की एफिशिएंसी जो है, क्रॉप पर ड्रॉप जो है, उसमें लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। और ऐसा ऐसा बतदरीज पुराना सिस्टम जो है वो नए सिस्टम से रिप्लेस करने का हम एक स्टार्ट ले सकते हैं। तो मेरा इसके ऊपर ये टेक है जी। जा रहे थे वो कैसे भी जा रहे फारसी ग्रुप के लिए इतना कुछ हमारे साथ हो रहा है, और हम जो है बिल्कुल अनअवेयर हैं, और हम लोगों के मतलब जो पब्लिक है उसमें उससे वाकिफ नहीं है। आप जी हमने जो माहिर को सुना है, और आपका भी बहुत काम है इस पे बिजनेस डेल्टा के ऊपर, और आपका बहुत ज़्यादा ये लाखों के सफ़र किया है और आपने इनके ऊपर काम किया है। मेरा एज ए वेब वुमेन एक्शन फोरम की तरफ से या सबकी तरफ से एक आपसे सवाल है
कि इन माहौलियाती तब्दीलियों से, इन कैनालों आने से, सिंध के इंडस रिवर का पानी जाने से जो मेन इलाके हैं जैसे हमारा बतीन, ठट्टा, सजावल और ये इलाके जो हैं जो मुकम्मल ख़त्म हो जाएंगे, उन इलाकों के लिए हम ये जानना चाहते हैं कि वहाँ पर काम करने वाली जो औरत है, वहाँ पे जो उन ज़मीनों से फ़ायदामंद होने वाली जो औरत है, उनकी ज़िंदगियों पे ये वो कितनी मुतासिर होंगी और क्या ये उनके साथ और पूरी सिंध की आवाम या औरतों के साथ ज़्यादती नहीं है? नहीं, एज ए जेंडर उनसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो वाफ का शुक्रिया कि इतना अहम उन्होंने मौजू अपने लिए चुना बातचीत के लिए। यकीनन आपने दो माहिरीन जिन्होंने आपको पूरा ये जो कनाल्स के हवाले से जो टॉपिक था उसकी आपको उन्होंने पिक्चर दे दी है। एक हाइड्रोलॉजिस्ट के तौर पे डॉक्टर हसन अब्बास, क्योंकि मेरा भी ज्योग्राफी से बैकग्राउंड है तो मैं टोटली इस बात को समझ रही हूँ कि वो क्या बात कर रहे हैं। इंडस बेसिन जो है वो सिर्फ एक हिस्सा नहीं है उसका, हमें पूरी उसकी बेसिन अप्रोच को, क्योंकि बेसिन की हेल्थ जो है वो उसके हर इलाके की हेल्थ को इंश्योर करती है। तबस्सुम, आपने आगाज़ में एक सवाल किया था कि क्या ऐसा हो सकता है कि मुल्क के एक हिस्से के लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए दूसरे हिस्से के लोगों को नुकसान पहुंचाया गया है? तो ये तो होता आया है, मतलब ये तो एक तरह सा रिटोरिकल क्वेश्चन है। अभी भी अगर हम देखें तो एक हिस्से के फार्मर्स को आप बेनिफिट देने के लिए दूसरे हिस्से के फार्मर्स को डैमेज करते आए हैं ना। इन कनाल से पहले देखिए आप तो डेल्टा की जितनी तबाही है, डेल्टा भी तो रिवराइन वहाँ पे फार्मिंग होती थी। इट वाज अ वेरी रिच एरिया ऑफ फार्मर्स। हम उसको डेल्टा को सिर्फ फिशर फोक से एसोशिएट करते हैं, लेकिन वहाँ रिवराइन फार्म वो बहुत मुतमाविल लोग थे। वहाँ पे घने जंगल भी होते थे, वहाँ पे खेती होती थी। और हम लोग केटी बंदर के एक गांव में गए थे तो वहाँ पे जो गांव का एक बड़े बूढ़े थे, उन्होंने एक तो पहले तो मुझे एक सहाफ़ी को मैं लेके गई थी, वो कनाडा से आई थी, वो उसको देखना था कि हम क्यों डेल्टा के बारे में इतना ज़्यादा बात करते हैं और इतने फ़िक्रमंद क्यों होते हैं हम। तो उन्होंने कहा कि अपने इर्द गिर्द देखें, आपको यहाँ पे कोई जवान नज़र आ रहा है या हम जैसे बूढ़े हैं, बच्चे हैं और औरतें हैं। 3 मरतबा ये गांव डिस्प्लेस हो चुका है सी इंट्रूजन की वजह से, ठीक है। और जवानों के लिए यहाँ वो कारोबार ही नहीं है। और अपने बड़ों का वो कह रहे थे कि यहाँ से बड़ी बड़ी कश्तियों में जो सेमाए आजकल के जो बड़े ट्रॉलर हैं, लेकिन जो पुरानी होती थी वो भी मतलब ट्रॉलर ही टाइप होते थे, यहाँ से वो रेड राइस और फल लेके सूरत तक जाते थे, डाउन द कोस्ट ऑफ इंडिया। एक ही मुल्क था ना तब, तो दे वर वेरी रिच फार्मर्स। तो वो तो तबाह हो गई हमारी, क्योंकि वो सारी जो सी इंट्रूजन, और लोग इसको क्लाइमेट चेंज से जोड़ते हैं। एक मसला ये है कि बराए मेहरबानी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और क्लाइमेट चेंज को 2 जुदा चीज़ों के तौर पे देखें, क्योंकि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन आप अपने हाथ से कर रहे हैं, हम उसको अपने हाथ से रोक सकते हैं। और जो सी इंट्रूजन को क्लाइमेट चेंज के साथ ओके क्योंकि टाइम कम है इसलिए मैं बोलती रही साथ से, सॉरी, इट्स ओके जी। तो ये सी जब हम किसी चीज़ का मलबा क्लाइमेट चेंज की दहलीज पे डालते हैं, किसी ऐसी चीज़ का जो हमने अपने हाथ से की हो, और अगर हम उसे अपने हाथ से करना रोकें तो फिर वो इतना बड़ा एक ओवरवेलमिंग आलमी मसला लगता है कि भाई इसका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है, हम क्या कर सकते हैं। सी इंट्रूजन जो हो रही है, जिसकी वजह से समंदर के अंदर दरअंदाजी हो रही है, वो सी लेवल राइज जो क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रिडिक्टेड है, ये वो नहीं है। ये उस वजह से है क्योंकि डाउनस्ट्रीम कोटरी फ्रेश वाटर फ्लोज नहीं आ रहे। समंदर हमारा ये एक ज़माने में ग्रोइंग डेल्टा था, इंडस रिवर छठा बड़ा दरिया है और बेतहाशा सिल्ट लेके आया करता था, जिसकी वजह से ये ग्रोइंग डेल्टा था। वो ग्रोथ ख़त्म हो गई, लेकिन वो जो मिलेनिया से जो इंडस रिवर की उसको जब मैंने ज्योग्राफी पढ़ी थी, ट्रिब्यूटरीज़ का तो सबको पता है, सतलज, झेलम, ये सब दरिया की डेल्टा में जो चैनल्स होते हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूटरीज़ कहा जाता है। वो डिस्ट्रीब्यूटरीज़ क्या बन गई हैं अब? वो क्रीक बन गई हैं। आपकी जो करंगी क्रीक से आप घारो जाते हैं,
वो इंडस रिवर की फ्रेश वाटर क्रीक होती थी, वहाँ फ्रेश वाटर फिश और श्रिम्प फार्मिंग होती थी। अब वो सेलाइन क्रीक है भंबोर तक। भंबोर में भी वो दरिया की पोर्ट थी, अब वहाँ पे जो पानी आ रहा है वो सेलाइन वाटर हो गया है। अगर आप भंबोर के जो वो हैं एक्सकवेशन हैं उनसे नीचे उतरें तो वहाँ पे वो आपके मैंग्रोव्स भी उग रहे हैं जो इंटरटाइडल जोन में जहाँ सैलिनिटी होती है वहाँ उगते हैं। तो दरियाओं के अंदर तो पहले नहीं कभी सुना था ना कि जहाँ से फ्रेश वाटर है वहाँ से मैंग्रोव्स उगते हैं। आपकी पूरी इकोलॉजी चेंज हो गई है, सैलिनिटी का इतना कंटेंट बढ़ गया है और आपका अंडरग्राउंड वाटर जो है वो ब्रैकिश हो गया है, जिससे आपकी जो रही सही एग्रीकल्चर थी आपकी डाउनस्ट्रीम कोटरी ख़ास तौर पर डेल्टा में वो भी तबाह हो रही है। अच्छा, ये तो वो बातें हैं जो आई एम श्योर आप सबको पता है। आपने खुद कहा कि बदीन का और ठट्टा का, सुजावल का ये क्या हाल है। सुजावल में भी हम आई थिंक नसीर भी जब जाते थे थरपारकर की तरफ, और मैं भी, तो ख़ास तौर पे गाड़ी में से रुक के ऊपर निकल के वो दरिया की तस्वीर डालते थे और कहते हैं कि जाने वालों का बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम ये ज़रूर ये कैप्शन डालते थे कि देखिए जी दरिया शेर दरिया की मौजें जो हैं वो समंदर में ज़ाया होने के लिए बेचैन हैं, जबकि उसकी एक स्ट्रीम होती थी जो कि एक छोटा सा नाला होता है वो होता था। तो किधर गया वो हमारा शेर दरिया जो हमारे अफसानों में होता था। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमने, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ओवर डैम्ड, ओवर विड्रॉल, ये सारी चीज़ें आपके पूरे बेसिन को तबाह किया है उसने। और फिर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन उसके साथ साथ होती है। देखिए, जो एक फंडामेंटल चीज़ है वो इसका यहाँ मौजू तो नहीं है, बट आई वुड जस्ट लाइक टू पुट इट आउट देयर कि जो एलिफेंट इन द रूम है वो आपकी पॉपुलेशन है। पानी की कमी की हम बात करते हैं, पॉपुलेशन के बढ़ने की उसकी रफ्तार के तनाजुर में आप देखें, अब तक उस तरह से क्लाइमेट चेंज का असर नहीं आया। हमारे सिस्टम में जितना पानी तकरीबन पाकिस्तान बनने के वक्त होता था, तमाम दरियाओं, मानसून, ग्लेशियल मेल्ट, रिवर फ्लोज का मिला के अब भी तकरीबन उतना ही आता है। लगारी साहब कितना 156 कितना MAF टोटल तकरीबन सिस्टम में, पूरा सिस्टम में जो पानी अवेलेबल इतना ही था ना। तो अब उसमें कोई इतना ड्रास्टिक अभी तक चेंज नहीं आया कि हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर इस चीज़ को अपनाएं। पर कैपिटा जो आपकी अवेलेबिलिटी है वो कम से कम हो रही है क्योंकि आबादी बढ़ती चली जा रही है। सो एक तो ये मौजू है, उसी की वजह से आपको फूड सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, आपने ज़्यादा उगाना है, आपको ज़्यादा खाना है। उसमें जो डॉक्टर साहब ने बात की है वो एक एसेंशियल चीज़ है। क्रॉप पर ड्रॉप का इन्होंने जिक्र किया। आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट उठा के देखिए, पाकिस्तान का क्रॉप पर ड्रॉप रेशो इज़ अबाउट द वर्स्ट इन द वर्ल्ड। डॉक्टर साहब अगर कोई इससे वर्स्ट मुल्क है तो वो बता दीजिए। बेस्ट वो मुल्क है जहाँ पे कोई दरिया नहीं है। उस मुल्क का नाम लेते हुए इस वक्त हमें एक वो हिजान होता है, इसराइल। बेस्ट वाटर मैनेजमेंट इसराइल ने दुनिया को दिखाई है। ठीक है, वो वहाँ पे एग्रीकल्चर भी होता है, वो फूड सिक्योर भी है, उनका पानी की भी सिक्योर है। ठीक है, वो चोरी करते हैं उससे, मतलब अगर हम उसको लार्जर उसमें एक ह्यूमन उस पर देखें कि वो फ़लस्तीनियों का पानी है। बट द पॉइंट इज़ कि आज मैं 80s में यूनिवर्सिटी में थी और उस वक्त मेरे टीचर ने मुझे बताया था कि जी वो एक चीज़ होती है ड्रिप इरिगेशन जो इसराइल करता है, हम 2024 में क्यों नहीं कर रहे ये। फ़िरौन मिस्र का जिक्र किया, उस ज़माने में जो फ्लड इरिगेशन होती थी, जो हमने कुरान शरीफ में और बाइबल में जो हज़रत यूसुफ़ का किस्सा सुना, उसमें फ्लड आता है, फिर ड्राई ईयर्स आते हैं, ड्राउट आता है, सिक्लिकल चीज़ें हैं ना वो। तो वो चीज़ें कंट्रोल करने के तरीके इंसान के जहन ने इस्तेमाल कर लिए। वो यहाँ के कौन से इंसान हैं जो वो क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते। हम भी तो इसी से कुर्राए अर्ज़ के लोग हैं ना। देर आर वेज़ टू डू इट कि आपके ऊपर की जो ज़मीन है, और ये मुझे उस वक्त का याद है जब मैंने उसमें एक कोर्स लिया था लम्स में, और उसमें डॉक्टर साहब की प्रेजेंटेशन थी जिसमें इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की तस्वीरें दिखाई थी खेतों की, और वो कॉर्न था जो हमारे यहाँ भी होता है, जिसमें ऊपर की ज़मीन इस तरह थी जैसे हमारी ड्राउट ज़्यादा ज़मीन की नहीं होती, क्रैक्ड, लेकिन उसमें एक एक की जगह 3-3 खोशे लगे हुए थे क्योंकि उसमें जड़ में पानी जा रहा था। सो ये तमाम टेक्निक्स अवेलेबल हैं। पानी की शॉर्टेज के ऊपर भी हम काबू पा सकते हैं, हम बेहतर यील्ड भी कर सकते हैं। बेहतर यील्ड के लिए तो बहुत दूर जाने की मिसाल भी नहीं है। आप वागा से ट्रैवल कीजिए इंडिया, इधर आप देखिए कि आपकी गंदम की हाइट क्या होती है, उधर देखिए गंदम की हाइट क्या होती है। क्यों? एक ही ज़मीन है, एक ही पानी है, एक ही तरह के लोग हैं,
but they adapted to newer scientific methods. हम भी ये कर सकते हैं, इनफैक्ट कर सकते नहीं हैं, ये इम्पेरेटिव है कि हम अपनी फूड सिक्योरिटी के लिए इस तरह के तरीके अपनाएं. दुनिया भर में फार्मिंग में कहीं खेतों में आपको खड़ा पानी नज़र आए, वो इट्स क्रिमिनल, इट्स कंसिडर्ड क्रिमिनल. हमारे यहाँ लड़ाई इस बात पे होती है कि जी वो राइस लगाना है हमने, तो वो पानी नहीं आया अभी तक और वो छोड़ा नहीं है उन्होंने. और दूसरी चीज़ ये जो आपने रपेरियन की बात की, उसी कोर्स में ग्रुप वर्क में हमें बताया गया था कि देयर इज़ अ टर्म, इट्स कॉल्ड अ लोअर रपेरियन ब्लूज़. लोअर रपेरियन हमेशा रोता पीटता रहता है अगर मुनसिफाना अपर रपेरियन ना हो, और वो इंसाफ कहीं लेजिस्लेशन के ज़रिए मिलता है, कहीं लड़ाई झगड़े के ज़रिए मिलता है. ठीक है ना. तो इंसाफ के भी तरीके हैं. और जैसे इंडिया पाकिस्तान में हम अपर लोअर रैपेरियन है, जैसे पंजाब सिंध के अंदर हम लोअर रैपेरियन है, और सिंध में डेल्टा वाले बिल्कुल टेल में हैं. ये इसमें एक गैर मुनसिफाना तकसीम का भी हिस्सा है. तो जब हम पानी के बारे में बात करें, ख़वातीन का उसके ऊपर इसलिए इतना ज़्यादा असर होता है कि किसी भी गैर मुनसिफाना तकसीम का डिसप्रोपोर्शनेट असर ख़वातीन पे होता है. Women are the water managers in पाकिस्तान. लाना भी उन्हीं ने है, इस्तेमाल भी उन्हीं ने करना है, और अगर नहीं बचता है मर्द की मर्ज़ी के मुताबिक तो मार भी उसी ने खानी है. ठीक है. उनकी तमाम जो फ़िज़िकल लाइफ है वो पानी लाने में गुज़रती है, जो हमारे रूरल इलाकों में औरतें हैं, और जो हमारे अर्बन आपके जिस तरह के हमारे यहाँ कच्ची आबादी है, जो गरीब, जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक सेक्शन है, वहाँ तो एक वो टैप है जिसमें रात 3 बजे भी उठ के पानी भरना है, रात 3 ही बजे उनको सब कुछ बर्तन भी धोने हैं, नहाना धोना भी है, और सुबह तक उन्होंने सब सारे घर को नॉर्मलाइज भी करना है. सो विमेन बेयर एन डिसप्रोपोर्शनेट बर्डन ऑफ एवरी इनजस्टिस. इसमें एग्रीकल्चरल विमेन हमारे यहाँ सिंध में बहुत हैं, तो जाहिर है उनकी ज़िंदगियों पे भी असर पड़ता है. जब आपका एक इलाका रेंडर हो जाता है नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर, तो आपकी होती है माइग्रेशन. अभी हम सिंध में इकोनॉमिक माइग्रेंट्स को तो जानते हैं, जो जी वो बराजी इलाकों में चले जाते हैं फिर वापस आते हैं. जब आपकी टोटल इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा, तो ये क्लाइमेट इंड्यूस माइग्रेशन या ये डिग्रेडेशन की वजह से जो माइग्रेशन है उसके सोशल स्ट्राइफ होते हैं. ये फलां ज़ात का आदमी अपने यहाँ पे फैमिली लेके आ गया, अब उसमें औरत के ऊपर क्या असर पड़ता है? औरत कन्फाइन हो जाती है कि उस जात के आदमी यहाँ हैं, तुम तो बाहर नहीं निकल सकती. सिंध में औरत बाहर निकलती है, काम करती है, कमाती है, चाहे उसकी कमाई उसके हाथ में आए ना आए, उसके मर्द उसकी कमाई लेके जाए. बट द पॉइंट इज़ कि वो उस वक्त वो फिज़िकली भी कन्फाइन हो जाती है. सो ये सारे डायनामिक्स जो हैं एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं. हम इसको खाली एक वाटर डिस्कोर्स के अंदर नहीं देख सकते, जब हम इसमें अनपैक करके ख़वातीन के ऊपर इसके असरात को देखें. थैंक यू. बहुत शुक्रिया. अच्छा, ये मैंने पहले भी कहा था कि मैं कोई टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, मुझे ज़बरदस्ती बिठा दिया यहाँ पे. तो मैं पहले मैं आपसे मैं माजरत करके जी मैं करता हूँ. देखिए, दरिया सिर्फ दरिया नहीं होता, दरिया तहज़ीब का नाम होता है, दरिया सिविलाइजेशन का नाम होता है. तो सिंध जो है वो सिविलाइजेशन है, इंडस सिविलाइजेशन. 5000 साल रिकॉर्डेड हिस्ट्री है कम से कम. अगर उसको और पीछे ले जाएं तो 8,000 साल पुराने मेहरगढ़ से लेके आज तक हमारा रिकॉर्डेड हिस्ट्री है. तो आप दरिया को नहीं, आप तहज़ीब को ख़त्म करने जा रहे हैं. तो ये जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, ये बहुत बड़ा क्राइम है एज़ कम्पेयर टू क्राइम अगेंस्ट एग्रीकल्चर. आप इस पर बात करें. दूसरा, ये पूरे सब कॉन्टिनेंट जिसको हम नंढा खंड कहते हैं, इसके अंदर 2 बड़ी तहज़ीबें जो मेन है. एक है गंगा जमुना की तहज़ीब और दूसरी इंडस की तहज़ीब, जिसको हम सिंध की कहते हैं. प्रोफेसर जैस्मीन उसने ने किताब लिखी जिसका किताब का नाम था पीपल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान. तो उसने कहा कि पूरे बड़े सगीर में अगर लड़ाई है तो वो इन दरियाओं की तहज़ीबों की लड़ाई है. मैंने एक तरफ जो है, थोड़ी ज़्यादा टाइम 5 मिनट के बाद मैं ख़त्म करता हूँ क्योंकि मैं फजूल बात करूँगा क्योंकि बहुत टेक्निकल बातें हुई. तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो थी, वहाँ पर दूसरा तबकाती निज़ाम था, यहाँ पर दूसरा कबायली निज़ाम था. ये पूरे बड़े सगीर के अंदर लड़ाई रही है हैव्स एंड हैव्स नॉट की. तो सिंध का ये जो इलाका है जिसको हम कहते हैं कि लोअर स्ट्रीम पे, उसका एक तहज़ीबी कल्चर दूसरा. इसका मतलब ये कि आप तहज़ीबी कल्चर को डिस्टर्ब करेंगे. दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है कि जब तहज़ीब बनती है तो तहज़ीब मोड ऑफ प्रोडक्शन को पैदा करती है.
यहाँ का मोड ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट है कंपेयर टू द मोड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अदर रीजन्स। तो क्या हम अपने मोड ऑफ प्रोडक्शंस को भी अपना जो डिस्टर्ब करेंगे, ये दूसरा सवाल आएगा। तीसरा आएगा डाइवर्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब दरियाए सिंध ने अपनी जो प्रोडक्टिविटी है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द अदर रीजन्स। तो क्या हम पूरे अपने इस रीजन से क्या पूरी डाइवर्सिटी भी ख़त्म करना चाहते हैं? हमारे सिंध की जो डाइवर्सिटी है, सिंधड़ी के आम से लेके बाकी सारी चीज़ें, तो क्या हम सारी तहज़ीब को ख़त्म करना चाहते हैं कि दुनिया में एक यूनिफॉर्मिटी प्रोड्यूस आ जाए? तो हमें इन लार्जर क्वेश्चन पे बैठ के बात करना पड़ेगा। जब तहज़ीबें होती हैं तो तहज़ीब का एक फोक, म्यूज़िक, कल्चर, आर्ट होता है। पूरे जो केव्स कल्चर हैं पूरे सिंध के, कराची से निकल के लेके आप पूरे उधर तक निकालें, तो वो क्या आप पूरे आने वाले फ्यूचर को, जो आपने कहा कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा, तो क्या हमारा मुस्तकबिल ड्राई होगा कि सिर्फ बच्चों को दिखाएंगे कि ये एक वक्त में था और आज हम ख़त्म हो गए? तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के लगारी साहब बैठे हैं, अपना रब साहब बैठे हैं और अपना नसीर बैठे हैं, कि उन मुल्कों में से जहाँ सबसे ज़्यादा जो मेन प्राइमरी सोर्स यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर है वो फॉर एग्रीकल्चर है। 93% of water is still used for the agriculture. Only 1% is used for the human consumption, ये जो हम सब पीते हैं, और 6% is used for the industry. जबकि आपने दूसरा, एक तरफ तो आपने कहा हम ये नए कैनाल खोल देंगे, दूसरी तरफ आपने SIACF के नाम से कोई बनाई ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम ये है कि हम लाएंगे इस मुल्क में इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट। तो सवाल ये है कि जिस पानी पे पहले झगड़ा है कि ये एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होगा, तो वो पानी जब इंडस्ट्री के लिए जाएगा तो ये नया झगड़ा किधर जाके खड़ा होगा? तो मेरा ख्याल अनएड्रेस क्वेश्चंस हैं जिस पर एक लार्जर डिबेट में मेरे ख्याल में बात होनी चाहिए। और ये वैफ ने मिल के जो पूरी एक वो इनिशिएट किया है, मेरे ख्याल में इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, उसको आगे बढ़ाएँ। मुझे असल में शुक्रिया ही अदा करना था, तो मैंने उसके साथ आपका शुक्रिया भी अदा कर दिया। थैंक यू वेरी मच। फैसले के पीछे कौन से सियासी खेल और मफादात हैं, और सिविल सोसाइटी और कॉमर्स जमायतें इस चीज़ के ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल दिखा रही हैं। सिंध हुकूमत या तो खामोश है या तो कमज़ोर रद्द-ए-अमल के साथ, उसके पीछे क्या कहा? 5 मिनट में दे दें, उसके बाद हम क्वेश्चन। अच्छा, वैसे तो शुक्रिया अदा हो चुका, अब कोई अखलाकी जवाब कम रहता है कि मज़ीद बात की जाए, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। अच्छा देखें, वैसे ऑनेस्टली ये क्वेश्चन तो कोई सिंध गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव हो उससे पूछना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं इस पर। मैं उनके बिहाफ पे तो बात नहीं करूँगा, मैं 2 फैक्टर्स सामने रखता हूँ एंड पीपल कैन एनालाइज इट। नाउ व्हाट इज सिंध गवर्नमेंट? I believe ERSA representation is in government. एहसान लगारी sitting there. अब आप मेरा जवाब भी तो सुने ना, मुझसे आपने सवाल पूछ लिया तो पानी की तो शॉर्टेज है, आप उस पर पानी भी ज़ाया करें। पूछे अच्छा जहाँ जहाँ जिसको अपर पोजीशन पानी पे मिलेगी एक्सप्लॉइट करेगा। अच्छा ओके अच्छा, तो एक दो चीज़ें हुई हैं वो मैं बताता हूँ, जो नहीं हुई वो मैं शेयर करता हूँ, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि होनी चाहिए। एक तो देखें, इरसा इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जहाँ पे ये चीज़ें डिबेट होती हैं। द गुड थिंग इज़ कि एहसान लगारी सिटिंग ईयर उसने उसके ऊपर अपना एक पूरा एक डिटेल्ड नोट जिस पे सिंध गवर्नमेंट का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू है ऑन एवरी पॉइंट ऑन दीज कैनाल्स एंड इवन इरसा एक्ट अमेंडमेंट पे भी वो उन्होंने दिए हैं, which I believe he is representing Sindh government. दूसरा, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इज़ एक्चुअली द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जहाँ पे इनको चैलेंज करना चाहिए था, और वहाँ पे सिंध गवर्नमेंट ने अपना एक काफ़ी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टेक्निकल नोट वहाँ सबमिट किया है। नोट क्या, एक पूरा केस है जिस पे सिंध गवर्नमेंट ने वो इनिशिएट किया हुआ है। नाउ दीज आर दी टेक्निकल फोरम्स, दीज आर दी यानी जो आपके स्ट्रक्चर के अंदर प्रोविजंस हैं वो हैं। But then there are dichotomies as well. Sindh government is also representing a party as well, wherein representing people of Sindh, and then there's a party as well. चूँकि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं और उनके सरबराह भी हैं, तो ये इंटरनल कोई पार्टी के अंदर भी ये डिबेट होनी चाहिए कि then what is the party line, because the government has to follow the party line. I don't think that parties follow government lines. Parties are bigger. They represent people.
Even those who are not part of the party, they have to represent them. तो जब ऐवान सदर से इस तरह की इंस्ट्रक्शन आती हैं, बावजूद कि उसके कोई भी असबाब हो सकते हैं पॉलिटिकल, जो सिचुएशन है मुल्क में, वी नो ऑल दैट, बट रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द पार्टी देन, कि वो अपने सरबराह से ये सवाल करें कि देन व्हाट इज़ आवर पार्टी पोजीशन ऑन दैट, और वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए सिंध गवर्नमेंट के वॉइस में। मैं तो चाहूँगा कि वो ज़रा पॉलिटिकल, एक तो आपकी नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं, सिविल सोसाइटी है, मेरा ख्याल है हमें कराची से ज़्यादा वॉइसेस चाहिए इस पे। वी नीड वॉइसेस फ्रॉम कराची। ये कोई ना समझे कि ये सिर्फ दरिया और किसान और खेत का मसला है। वही खेत है जिसका, ये देखें, अनाज सुपर स्टोर के शेल्फ में नहीं उगता, यहाँ पैक होता है, उगता नहीं है यहाँ वहाँ पे। तो जो लोग थोड़े से समझते हैं कि ये कोई बाकी खेत मजदूर का और किसान का और ज़मींदार का मसला है, वो प्लीज़ इस तरह से ख़ुद को डिसोसिएट ना करें इस इम्पॉर्टेंट इशू से। अल्टीमेटली पूरा सिंध इसी पानी के सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कराची का पानी पीने का कहाँ से आता है, इंडस्ट्री का कहाँ से आता है। कल अनाज की शार्टेज होती है और उसकी वजह से अगर प्राइस एस्केलेशन होती है तो सब पे करेंगे, सिर्फ ये नहीं कि जो सखर में बैठा है और ठरी मीरवा में बैठा है वो पे करेगा। और मैं कराची में रहता हूँ, मैं भी तो, हम सारे, मैं इसको किसी एथनिक बाउंड्री से नहीं देख रहा। Whosoever is living in Karachi, irrespective of his or her caste, creed and religion and faith, whatever, they should raise voices. थोड़ी सी ज़्यादा कराची के दोस्तों के हमें वॉइसेस चाहिए इस पे। फाइनली मैं समझता हूँ अपने सिंध गवर्नमेंट की तरफ वापस आते हैं। आई थिंक एक स्टेप अभी रहता है, सिंध गवर्नमेंट, सिंध असेंबली इस पर एक स्ट्रांगली वर्डेड रेजोल्यूशन भी अडॉप्ट करें। दैट विल सेंड अ स्ट्रांग पॉलिटिकल मैसेज एज वेल। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे क्विकली समझ में आती हैं एज अ रिएक्शन। थैंक यू। मैनेजमेंट और मंसूबे रहे तो 10 से 15 बरस में हमें पीने का पानी का एक कतरा भी मुयस्सर नहीं होगा और ये तहजीब हमारी आंखों के सामने भस्म हो जाएगी। आप क्या समझते हैं, 10-15 साल थोड़ा अच्छा है या इससे ज्यादा लगेगा? ये वही बात हुई है। आज से थोड़े से साल पहले 2016 या 17 में एक रिपोर्ट शाया हुई थी। उस रिपोर्ट को पाकिस्तान की जो 2008 में रिसर्च पाकिस्तान कौंसिल, जो कि सबसे बड़ा यहाँ पे पानी की रिसर्च का इदारा है गवर्नमेंट का, उसने उस रिपोर्ट को एंडोर्स किया था कि 2025 में पानी खत्म हो जाएगा। अब 2025 आने में थोड़े से दिन बाकी हैं और पानी यूं का तुम है। 1989 या 90 में भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि अगर कालाबाग डैम ना बना तो 2010 तक आधा पंजाब और पूरा सिंध डेजर्ट बन जाएगा। वो साल भी गुजर गया, ना पंजाब डेजर्ट बना ना सिंध डेजर्ट बना। 2025 भी आ गया, पाकिस्तान में पानी खुश्क नहीं हुआ। और ये जो कह रहे हैं 10 से 15 साल के बाद कुछ हो जाएगा, ये भी नहीं होना। पानी 1947 से जितना आ रहा है उतना आता रहेगा। तो प्लीज़ ये इस तरह की जो है ना, ये नॉन साइंटिफिक चीज़, इसके ऊपर बिल्कुल आपको कान धरने की ज़रूरत नहीं है। ये बस कहने की बातें, ऐसा हो नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन सर जगदीश शाहूजा से पूछना चाहूँगी और उसके बाद आपसे। थैंक मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जो कच्ची कनाल है उसका हम डायरेक्टर हैं, बीबी खान से मेरा ताल्लुक है, तो थोड़ा सा मैं उसका बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि कच्ची कनाल बंद हुई। कच्ची कनाल को हम वहाँ के इंडिजीनियस लोग और फार्म में जबरेली कनाल कहते हैं। उसकी रीज़न ये है कि कच्ची कनाल जो बन रही है वो कच्ची के एरिया में बन रही है। कच्ची का एरिया बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान के अंदर जो ज़मीनें हलाक हुई हैं वो उन्हीं लोगों की हैं जिसके नाम के ऊपर कैनाल का नाम हो। और ये जो कैनाल बन रही है वहाँ पे उनका टारगेट था कि पानी जाएगा वहाँ पे 16,000 क्यूसेक, लेकिन 16,000 क्यूसेक पानी वहाँ पे 1,000 क्यूसेक पहुँचा है, 15,000 क्यूसेक रास्ते में ज़ाय हो गया है। उसके अगेंस्ट जहाँ पे जो इंडस रिवर का जो पानी है जिसके डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी हैं वो जो हमारे एरियाज हैं वो
कच्चे के अंदर वहाँ पे डाकू बैठे हुए हैं और उन्हीं लोगों पे बैठे हुए हैं। हम वहाँ से 16,000 क्यूसेक भेज रहे हैं पानी, 15,000 क्यूसेक रास्ते में ज़ाया हो रहा है, उसका 8,000 क्यूसेक उस जमीन को सैलाब कर रहा है, जो सराइकी खिते की जमीन है, जो उसकी जमीन है, उसका 8,000 क्यूसेक पानी उस खिते की जमीन को सैलाब कर रहा है, वो जमीनें खराब हो रही। तो दो नहरें वहाँ से क्वेश्चन करें प्लीज, क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि मेरा हम डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी को क्यों नहीं हमारे करते? अभी सर ने कहा है कि हम जो है ना उसके लिए यहाँ के अंदर फूड की कमी है पानी, हम डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी को क्यों नहीं वहाँ पे हम एग्रीकल्चर रिफॉर्म क्यों नहीं कर रहे? बहुत तो हमारे कच्चे के एरिया बने हुए हैं जो डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी, हम इनडायरेक्ट ट्रिब्यूटरी को 400 किलोमीटर दूर पानी को लेना है, वहाँ पे क्यों ले जा रहे? नसीम मेमन साहब आप जवाब देंगे या हसन अब्बास साहब? प्लीज जवाब। जी चलिए मैं ये क्वेश्चन लेता हूँ। देखिए ये असल में जो मैं वही बात करता हूँ कि ये जो कैनाल्स बनाना है ना, ये यहाँ का बहुत पुराना कारोबार है। मैं थोड़ा ब्लंट होके बात कर रहा हूँ अभी। ये कैनाल बनाने वाली लॉबीज़ हैं, कैनाल बने ना बने, चले ना चले, किसी के इस्तेमाल में आए ना आए, दे कांट केयर लेस। इनका यह है कि जनाब कैनाल को अप्रूव कैसे कराना है, गवर्नमेंट के कौन सी मशीनरी को किस तरह से ट्वीक करना है कि अल्टीमेटली पैसा भी आ जाए, कैनाल भी बन जाए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्जे कैसे अप्रूव कराने हैं। जब प्रोजेक्ट हो गया तो होने के बाद मुड़ के नहीं देखना पीछे क्या हुआ है। आप कच्ची कैनाल की बात कर रहे हैं, चश्मा राइट बैंक कैनाल पे भी वो मेरे ख्याल में 12,000 क्यूसेक की बनाई थी, उसमें आज तक 400 क्यूसेक से ज़्यादा पानी नहीं चला। हिल टॉरेंट्स के एरिया में आपने कैनाल बना दी है, दुनिया में कहीं हिल टॉरेंट्स के अक्रॉस कैनाल्स नहीं बनाई जाती। आपकी कैनाल हर दफ़ा हिल टॉरेंट्स आते हैं टूटती है। 2022 में ये डेमोस्ट्रेशन बहुत बड़ा था जो कुदरत ने करके आपको दिखाया। वो एरियाज़ अगर आप इधर जाएँ तौसा वगैरह के एरिया में, उधर लोग कहते हैं कि हर 30 साल के बाद नया कोठा बनाओ। इसका क्या मतलब है कि वहाँ से इतनी ज़्यादा सिल्ट और मिट्टी हिल टॉरेंट्स में आती है कि पुराने बने हुए घर दफन हो जाते हैं, मिट्टी का लेवल ऊपर हो जाता है और 30 साल के बाद नया घर आपको बनाना पड़ता है, क्योंकि पुराना घर आपका मिट्टी में दफन हो जाता है। और ये कुदरती अमल है। उसके आगे आपने कैनाल बना दी, कमांड एरिया बना दिए। जो पंजाब सिंध के कमांड एरियाज अंग्रेज बना के गया था, वहाँ पे लैंडस्केप वॉज स्टैटिक, वहाँ पे इरोजन या डेपोजिशन नहीं हो रही थी। आपने एक डेपोजिशनल एनवायरनमेंट के बीच में कैनाल बनाई और उसके बाद में आपने कहा कि जी वही तरीका, वही फार्मूला जो पंजाब सिंध के पुराने कैनाल कमांड्स में इरिगेशन का है, वही आपने वहाँ पे लगाया। पहली बारिश के बाद वहाँ पे इतनी मिट्टी आ गई कि वो स्लोप सारी चेंज हो गई। और जो कैनाल कमांड के रहने वाले हो गए उनको पता है कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ दी स्लोप। स्लोप इज़ एवरीथिंग। अगर आपकी ज़मीन थोड़ी सी लेवल से ऊंची है तो उसको कम स्लोप मिलेगी, कम पानी मिलेगा। थोड़ी सी नीचे है तो ज़्यादा पानी मिलेगा, ज़्यादा स्लोप बन जाएगी। तो ये जो स्लोप्स हैं वो उस इलाके का, तो लैंडस्केप इज़ चेंजिंग इन स्लोप्स, और आपने उसके बीच में कैनाल्स बना दी। ये जो नॉन साइंटिफिक काम है ना, ये इस पे मैं कहता हूँ खुदा का वास्ता है कि ये जो नॉन साइंटिफिक फार्मूला आप हर जगह पे अप्लाई कर रहे हैं ना, अभी ये जो उधर कैनाल लेके जा रहे हैं, अगेन ये चोलिस्तान की ये कैनाल की बात हो रही है, वहाँ पे प्लेन एरिया नहीं है, वो डेजर्ट्स हैं, वो ड्यून्स हैं, वो टीले और टिब्बे हैं। कैनाल तो ग्रेविटी पे चलती है भाई, उसने तो सिर्फ अपनी स्लोप को फॉलो करना है। तो ये जो फार्मूले है ना कि आप पहाड़ों में भी कैनाल बना दो, तो दरियाओं में भी कैनाल बना दो, और सहरा में भी कैनाल बना दो। भाई कैनाल सिर्फ उस जगह पे बनती है जो जगह रिलेटिवली स्टेबल होती है। हर जगह पे कैनाल बनाने का जो है ना, अगर इतनी ये जगह होती तो ये शायद अंग्रेज़ के ज़माने में भी ये आबाद हुई होती, क्योंकि वो तो हर चीज़ को आबाद करने के चक्कर में था, क्योंकि उसने यहाँ से अपना रेवेन्यू कमाना था। तो जो जो कैनाल्स हमने बाद में कंसीव करके बनाई हैं और वो गलत एरियाज़ में बनाई हैं, गलत जगहों पे बनाई हैं, उनके डिज़ाइन गलत हैं, उनकी इंजीनियरिंग गलत है, और अल्टीमेटली उनके इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो हैं वो टैक्स पेयर भर रहा है। जिन कंपनियों ने कैनाल्स बनाई, जो कंसल्टेंट्स थे वो चले गए, उनको कभी किसी ने नहीं पूछा। तो ये एक बहुत बड़ी लॉबी है जो अभी भी हरकत में आ गई है, और इसके बावजूद कि इस वक्त दुनिया बहुत एडवांस्ड हो चुकी है इरिगेशन के मामलात में, इस वक्त बहुत एफिशिएंट मेथड्स आ गए हैं। कैनाल्स को तो कोई आज तक पूछता नहीं है, लेकिन वो आज भी पाकिस्तान में कैनाल्स बनवाने में कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हमने इस चीज़ को जो है ना हाईलाइट करना है कि भाई आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न मेथड्स को जब तक इन कंपैरिजन नहीं लेके आते,
इन कैनाल्स के अगेंस्ट कि जी इधर कोई मॉडर्न मेथड नहीं चलता, इधर सिर्फ कैनाल चलती है। और हमें ये साइंस के तहत आप साबित करके दें कि इधर सिवाय कैनाल के और कोई सिस्टम नहीं चल सकता, तो फिर तो हम भी आपको कहेंगे अच्छा ठीक है बनाओ कैनाल, तुमने फूड सिक्योरिटी करनी है, तुमने एक्सपोर्ट करनी है। लेकिन अगर ऑल्टरनेट मेथड्स मौजूद हैं, अगर एफिशिएंट इरीगेशन के मेथड मौजूद हैं, अगर कैनाल जहाँ पे 1000 क्यूसिक की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे मॉडर्न मेथड आपको वही काम 1000 के बजाय 100 क्यूसिक में करके दे सकता है। बेटर प्रोडक्शन, हॉलैंड के मॉडल देखें, कैलिफोर्निया के मॉडल देखें, बाकी तो सारी चीज़ें इनकी मॉडर्न वर्ल्ड से आ जाती हैं, जो अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए मोबाइल फ़ोन भी आ जाते हैं, अच्छी गाड़ियाँ भी आ जाती हैं। उस वक्त पाकिस्तान जो है ना वो पसमानदा मुल्क नहीं होता। लेकिन जब लोगों के लिए टैक्स पेयर के पैसे से टैक्स पेयर के लिए कोई मॉडर्न चीज़ आनी होती है तो पाकिस्तान गरीब को फ़ौरन गरीब करार दे के कहते नहीं हमने पुराना काम करना है, और उस पुराने काम में ज़्यादा नुकसान होता है। सॉरी मैं थोड़ा सा ब्लंट होके मैंने बातें की, बट दिस इज़ द स्टोरी। मैं आपका हसन साहब बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप हमारा ख्याल रख रहे हैं सिद्धवालों का, और नसीब मेमन साहब की मेहरबानी इस्लामाबाद में रहकर कि हमारे सिंध के जितने भी मसाइल हैं उसमें अपना आर्टिकल प्लीज सवाल। सबसे पहले बात यह है कि डेल्टा में जो पानी छोड़ना चाहिए था 91 अकॉर्ड के हिसाब से वो पानी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, कहाँ जा रहा है? तो फिर अभी एक ये बात दलील है कि भाई आगे पानी भेज रहे हो तो आगे कैसे सर आप सवाल कर ले, टाइम की शॉर्टेज है। ज्यादा मेरा गुजारिश और ये थी कि नसीर साहब से कि आप लोग डिमांड करें कि भाई जितनी जमीन सिंध की समुद्र ले गया है 30 लाख एकड़, उनका क्लेम चाहिए हमें, वो क्लेम सेंट्रल हुकूमत को देना चाहिए। हम सिंधवालों ने क्या बुरा किया है, हमारी जमीन भी गई, हमारे घर भी गए, हमारे सब कुछ लूट किया, फिर भी हमें क्लेम नहीं देते। थैंक यू गैस के पैसे या जी नसीर साहब। जी नसीर साहब, सर आपका सवाल हो गया नसीर साहब, प्लीज। किसी और का कोई सवाल है? प्लीज कमेंट नहीं करें, सिर्फ सवाल। ठीक हसन साहब, हम आपसे आज के कुछ रिमार्क्स लेना चाहते हैं ताकि कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दें सर जी प्लीज थोड़ी जी सी थैंक यू। ये खामोशी देखिए करें। कंक्लूजन मैं यही कहूँगा। एक सवाल है सर, जी, जी। फाइनली लास्ट क्वेश्चन होगा ये, प्लीज सर प्लीज। और पहले 1945 का जो वाटर रिकॉर्ड था उस जमाने में 94 मिलियन एकड़ फीट यूज्ड टू फ्लो फ्रॉम इंडस टू द सी इन 1945 एंड लेटली इन द लास्ट फ्यू इयर्स IUCN ने डिटरमिन किया था कि 7.3 मिलियन एकड़ फीट से कम अगर पानी जाएगा दरिया से समुद्र में तो वो बिल्कुल तबाही होगी। तो आजकल क्या सूरत हाल है, कितना जो है मिनिमम जरूरत है हमको टू कीप इट एटलीस्ट अलाइव, फ्लो इनटू द सी? जी हसन साहब। डॉक्टर साहब आपके सवाल। जी ये एक बहुत एक्चुअली बहुत ही दिलचस्प सवाल है। इंडस डेल्टा में कितना पानी चाहिए वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हम अब डेल्टा को कैसा देखना चाहते हैं। अगर तो हम डेल्टा को वैसा देखना चाहते हैं जैसा ये कैनाल सिस्टम बनने से पहले था, जब मैडम आफिया ने बताया कि ये डेल्टा एडवांस करता था, इट वाज ए ग्रोइंग डेल्टा। अगर तो हम डेल्टा को इस तरह से देखना चाहते हैं तो फिर जितना सिंध में पानी चलता है जैसे नेचर ने इसको चलाया था
हमें वो सारा पानी उसी तरह से चलाना होगा। और अगर हम कहीं पानी इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़रूरत के लिए दरिया से, तो हमने उसको इस्तेमाल करने के बाद पानी को वापस डाइवर्ट करके, ऑफ कोर्स उसको जो भी एक सिस्टम है कि आप पानी को इस्तेमाल करने के बाद क्लीन करके वापस एनवायरनमेंट में कर देते हैं, हमें अपने सिस्टम को उस तरह से रीशेप करना होगा। और उसमें सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं, हिंदुस्तान ने भी ये काम करना होगा, फिर कहीं जाके आपका डेल्टा उस लेवल पे आएगा। लेकिन उसके बाद में जितना आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, आप कहेंगे जी ठीक है ग्रोइंग ना हो, इरोजन ना करे, तब कितना पानी चाहिए? अच्छा जी इरोजन भी इतनी नहीं, इतनी हो जाए तब कितना करे? अच्छा इसकी 26 क्रीक्स थी, हम कहेंगे कि चलें 26 में से हम जो है वो 20 को चलाना चाहते हैं, या 15 को चलाना चाहते हैं, या 5 को चलाना चाहते हैं। तो ये सारी जो है ना वो फिर आपके बन जाते हैं कि आप किस लेवल के ऊपर उसकी रिस्टोरेशन को चाहते हैं। और बेस्ट रिस्टोरेशन इज़ कि आपका जो एक पहाड़ियों से जो रेत और मिट्टी आती है, ये आपके जो है ये हिमालय, काराकोरम और हिंदू कुश के पहाड़ हैं जो इधर फीड करते हैं। ये सारी सिल्ट और मिट्टी जो दरिया के पानी के साथ आती है, पानी कैरियर है और सिल्ट और मिट्टी जो है वो बिल्डर है डेल्टा। तो ये मिल के ये सारा काम होता है। तो वो जो इरोजनल रजीम है हमारा, उसमें कोई चेंज नहीं आया। इरोजन उसी तरह से हो रही है उन माउंटेन्स में, ग्लेशियर्स और पानी और मानसून हर चीज़ उसको इरोड कर रहे हैं। लेकिन जो उसका डेपोजिशनल रजीम था उसको हमने चेंज कर दिया। इस सारी इरोजन का डेपोजिशनल रजीम आपका इंडस डेल्टा था, लेकिन आपने वो जो मटेरियल आ रहा था कहीं आपने डैम में ट्रैप कर दिया, कहीं आपने बैराज में ट्रैप कर दिया, और कहीं आपने कैनाल के पानी के साथ उसको दरिया से निकाल दिया। और ये जो जिस तरह से भी 2022 में बारिशें हुई हैं, बारिशों का पानी भी डेल्टा में आया है, बट ये कोई ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है क्योंकि बारिश के पानी में मिट्टी नहीं होती। हमें वो पानी चाहिए जो दरिया के हेड वाटर से निकल के डेल्टा में आ रहा है। इसीलिए मैंने बात की सिस्टम अप्रोच की, हमने पूरे सिस्टम को रिस्टोर करना है। और इसीलिए मेरी इससे पहले टेड टॉक वगैरह भी है और मेरा हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि लेट द रिवर फ्लो। जब दरिया चलेगा एज मच क्लोजर टू द वे नेचर इंटेंडेड, तो उसमें हम सबका फ़ायदा है। और हमने अपने आप को अडेप्ट करना है रिवर के साथ, ना कि रिवर को अपनी ज़रूरियात के मुताबिक उसकी काट फांट करनी शुरू कर देनी है। तो बेसिकली जो आप रिक्वायरमेंट बता रही हैं वो रिक्वायरमेंट कम नहीं हुई, हमारा क्राइटेरिया टू मेंटेन डेल्टा कम हो गया है। अभी तो हम कहते हैं कि 10 से भी चल जाएगा। किसी ज़माने में लोग कहते थे कि 90 चाहिए, किसी ज़माने में कहते थे 72 चाहिए, अब कहते हैं जी 10 चाहिए। मेरे हिसाब से तो 210 चाहिए। 100% फ्लो ऑफ इंडस शुड बी फ्लोइंग द वे इट वॉज फ्लोइंग। और इसमें सिर्फ डेल्टा का ही नहीं है, डेल्टा डेफिनेटली जो वहाँ के लोग हैं वो ज़्यादा इसको जानते हैं। ऊपर जो आपके रिवराइन कॉरिडोर में वेटलैंड्स और बाकी रिवराइन सिस्टम्स ख़राब हुए हैं, उनका भी हाल डेल्टा वाला ही है। लेकिन डेल्टा की ऑफ कोर्स जहाँ पे मैक्सिमम तबाही हुई है वो डेल्टा में हुई है। तो मेरा इसके बारे में यही जवाब। एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सिर्फ ऐड कर दूं कि प्री तरबेला डेटा के मुताबिक एवरी ईयर 400 मिलियन टन सिल्ट कोटरी से नीचे फ्लो करता था, अब 126 मिलियन टन करता है। प्री तरबेला एरा में एवरी ईयर 30 मीटर सिल्ट डिपॉजिशन की वजह से डेल्टा एक्सपैंड होता है, जो कि अब रिवर्स। Can I just add one thing to it? वो ये कि ये इदरीस साहब जो इरिगेशन के माहिर हैं सिंध के, उनकी रिपोर्ट के अंदर दर्ज है। नसीर प्री तरबेला की बात कर रहे हैं, उन्होंने प्री सक्खर बराज जो अंग्रेज़ों के ज़माने में बना है उसकी सिल्ट लोड और किस तरह उन्होंने उस सिल्ट लोड को ट्रैक किया है कि एक बराज बना इतना सिल्ट लोड कम हुआ, दूसरा बना इतना कम हुआ, होते होते आप देखिए डाउनस्ट्रीम कोटरी। और दूसरी बात ये कि जब आप टेलीमीट्री और वो नंबर से खेलते हैं ना, तो नंबर से खेल बहुत आसान होता है। जितना अपोर्शनमेंट अकॉर्ड में लिखा हुआ है कि डाउनस्ट्रीम कोटरी इन्वायरमेंटल फ्लोज आने चाहिए, वो आपको मिलता है डेटा कि हाँ जी उतने ही आते हैं। बट द पॉइंट इज़ ये ओवर द ईयर, द होल ईयर चाहिए आपको। खाली फ्लड के ज़माने में वो तेज़ी से पानी आया और निकल गया, ना ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ ना कुछ। सो आई मीन देयर डिफरेंट वेज टू लुक एट इट। हमें उसको होलिस्टिकली आपका हो गया जी। जी मेरा सवाल जो है ये डॉक्टर हसन से ये है। डॉक्टर साहब ये तो मेरे लिए इंतहाई
शॉकिंग न्यूज़ है और मैं अब तक इसके शॉक से निकल नहीं पाई हूँ। आपने जो वाटर इंडस अकॉर्ड की बात की, आपने ये कहा वो तो साइंटिफिकली बेस्ड ही नहीं है। आई मीन दिस इज समथिंग वेरी, ये कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा रिकॉर्ड जिसके बारे में हमेशा पढ़ा है कि ये तो बड़ा जबरदस्त क्यों नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता तो है। ये आप कुछ ऐसे ब्रीफली बता दीजिए कुछ ऐसे कौन से लोगों की ये साइंटिफिक मतलब क्या ऐसे साइंटिफिक इनपुट चाहिए था जो उसमें मिसिंग हुए और फिर पता नहीं उसके बाद आगे क्या कराया था, लेकिन आपने पहले क्या साइंटिफिक क्वेश्चन हो गया जी जी हसन साहब आप सॉरी और था, मैं मुझे थोड़ा सा सिर्फ क्वेश्चन का पार्ट थोड़ा सा रिपीट करेंगे। उनका क्वेश्चन ये कि 1960 का जो इंडिया पाकिस्तान अकॉर्ड है इंडस हेरिटेज, वो आपने कहा कि बिल्कुल अनसाइंटिफिक था, तो आप उसको जस्टिफाई करें कैसे? हमें तो वो देखिए, पहली बात तो ये मैंने एक्चुअली जिक्र भी किया है, आपने अकॉर्ड में 3 दरिया बंद कर दिए। दुनिया के किसी अकॉर्ड में आज तक 3 दरिया बंद नहीं हुए 100%। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, बंद कर दें। दूसरा, आपने कहा कि गंदे नाले 4 बड़े मेजर डर्टी ड्रेन्स विल बी ड्रेन्ड इन दी एम्प्टी बेड्स ऑफ रावी एंड सतलुज, यानी कि एक ऐसा अकॉर्ड जिसमें पोल्यूशन को एग्री किया गया है इन आफ्टर डिग्रेडिंग द रिवर्स और डिप्राइविंग द रिवर्स फ्रॉम देयर वाटर, आपने एग्री किया है कि उसके बीच में अब हम गंदा पानी भी डालेंगे। यानी इससे ज़्यादा और नॉन साइंटिफिक चीज़ क्या हो सकती है? इसको तो अगर अभी कभी मौका मिला हमें अपनी ज़िंदगी में या हमारे बाद वालों को, तो उन्हें तो इस मुआहदे को इकोसाइड का केस लेके जाना चाहिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इकोसाइड का केस बनता है कि आपने चंद लोगों के फ़ायदे के लिए या चंद लोगों की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए आपने परमानेंटली एक एनवायरनमेंट को डिग्रेडेशन करने का पूरा प्लान साइन कर दिया। देखिए, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जिगर की बीमारियां हैं वो साउथ पंजाब में हो रही हैं, क्योंकि उनके फूड चेन में वो गंदे नालों का पानी जो है वो शामिल हो चुका है, जिसके बीच में हैवी मेटल से लेके तो दुनिया जान के टॉक्सिन्स, बायोलॉजिकल और सारी इम्प्योरिटीज़ आ रही हैं। और क्योंकि मुआहदे में आपने साइन किया हुआ है इंडिया के साथ कि इसके बीच में जो वो वहाँ से गंदा नाला आएगा, उसका कितना आएगा पानी, उसकी क्वांटिटी पे कोई कैप नहीं है, उसकी क्वालिटी पे कोई कैप नहीं है। हाँ, एक उसमें कंडीशन ज़रूर है कि अगर वहाँ से पानी ज़्यादा आना शुरू हो जाए तो पाकिस्तान उस नाले का साइज़ बड़ा करेगा एज ए गुड सिटीज़न ऑब्लिगेशन, और उसके लिए पैसे इंडिया दे देगा। ये आपकी ट्रीटी साइन हुई है। और वो लोग जो बीमार होकर मर रहे हैं, वो बच्चे जो 10 साल की उम्र में जिगर की बीमारी में मुब्तला हुए हैं, और वो लोग जो बीमार हो रहे हैं, तो मतलब है कि ये कहने का मकसद ये है कि ये वाकई नॉन साइंटिफिक है। इसको कभी आप स्क्रूटनाइज करें तो सही साइंटिफिक बेसिस के ऊपर, तो आपको समझ आएगी कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी में किया क्या अपने साथ। थैंक यू। नाजरीन, हमने माहिरों को सुना और ये भी सुना कि सिंध किस मुश्किल हालात से गुजर रहा है। यहाँ जो शागिर्द मुझे कुछ नज़र आ रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो आगे जाके इस चीज़ पे रिसर्च करें, और वेव के थ्रू, वेव के प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं सब ख़वातीन से ये गुजारिश करती हूँ कि इस बात को इस सेमिनार के हद तक ख़त्म नहीं कीजिएगा। आपके सवालात बहुत हैं, आपके अंदर जुस्तजू बहुत है। आज के सेमिनार के बाद जाके खुद रिसर्च करें, और हम इसका एक और सेमिनार करेंगे और हम करते रहेंगे। वेव अपनी आवाज़ उठाती रहेगी जब तक हम इस चीज़ को ख़त्म ना करवा दें। और इससे पहले कि मैं अदी अनीता को बुलाऊँ, मुझे शाह लतीफ़ के ये वर्ड ख़वातीन के लिए पढ़ना ज़रूरी समझ रही हूँ, क्योंकि ससी लंघियो सो मर्द जंहिं मात कया, जबल वॾो जो निवड़ मिड़ई नीअ खे। मां मर्द, तव्हां ॿुधो घटि पिया। अनीता पिंजाणी साहबा खे रिक्वेस्ट कयां थो त वुमन एक्शन फोरम जे तरफ़ां अचनि ऐं वोट ऑफ थैंक्स या का कमेंट कनि।
थैंक यू वेरी मच सभिनी जी, थैंक यू डोनर चई छॾी आई थिंक सो। थैंक यू तव्हां सभिनी स्पीकर जी ऐं तव्हां सभिनी जी जो तव्हां एतिरो टाइम कढी हमारे पास आए, और बहुत बहुत शुक्रिया आसन साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया। और नसीर साहब, डॉक्टर रियाज साहब, आफ्टर सलाम, आपका बहुत शुक्रिया, और सबसे बढ़कर आप सब लोगों का जिसने हमें इतना अपना कीमती टाइम निकाल के दिया। अभी मैं लास्ट में जो वुमेन एक्शन फोरम की स्टेटमेंट है, जो डिमांड्स है, वो मैं पढ़ूंगी, फिर आपकी जान छोड़ देंगे। सही बात है। 8 जुलाई 2024 को ईवान सदर की प्रेस विंग की तरफ से एक मीटिंग की ब्रीफिंग जारी की जाती है, जिसमें बताया जाता है कि सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के मुतल्लिक़ इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी और आला अस्करी हुकाम ने शिरकत की। बाद अज़ान इस इजलास के सरकारी मिनट्स भी मंजर आम पर आए, जिनके मुताबिक ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की तर्जुमानी में अस्करी हुकाम ने शिरकत की। उनके नाम है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिफ, मेजर जनरल मोहम्मद यासिर इलाही, मेजर जनरल अब्दुल समी। 8 जुलाई 2024 को ईवान सदर से जारी प्रेस बयान में और मीटिंग मिनट्स में पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को बताया गया कि ईवान सदर की एक बैठक में 5 अफराद ने पाकिस्तान की ज़रई ज़मीनें हथियाने, उनको दरियाए सिंध के पानी की फराहमी यकीनी बनाने और सारे आबपाशी निज़ाम को अस्करी हुकाम के हवाले करने के मुतल्लिक़ सारे अहम नोयत के फैसले कर लिए हैं। बाकी सारे मुतल्लिका आइनी इदारों बशुमाल पार्लियामेंट और अदलिया को उन पर महर तस्दीक सब्त करनी है और वफाकी और सूबाई हुकूमतों को उन पर अमल दरामद कराना है। 8 जुलाई 2024 को आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, जिसको अस्करी कंपनी की हैसियत दी गई है, के इजलास में सबसे तबाहकुन फैसला दरियाए सिंध के आबपाशी निज़ाम इंडस रिवर बेसिन सिस्टम से 6 कैनाल निकालने का मंसूबा है, जिसको स्ट्रेटेजिक कैनाल जाने कौमी सलामती के कैनाल की हैसियत दी गई है, जो अस्करी हुकाम के ज़ेर इंतज़ाम ज़मीनों को सैराब करेंगे। यानी सबसे पहले तरजीही बुनियादों पर अस्करी कंपनियों की ज़मीनों को पानी फराहम किया जाएगा और बाकी मांदा पानी किसानों और आबादकारों की ज़मीनों को सैराब करने के लिए दिया जाएगा। इस फैसले पर अमल दरामद के नतीजे में सिंधु नदी डेड रिवर जाने मरी हुई नदी बन जाएगी, क्योंकि इसके पानी का रुख सिंध और समंदर से मोड़कर पंजाब की उन ज़मीनों की तरफ किया जाएगा जो अस्करी हुकाम के ज़ेर इंतज़ाम होंगी, जिसका मुँह बोलता सबूत ये है कि 8 जुलाई को गैर आइनी इजलास के फैसलों की नवीद सुनाते हुए बताया गया कि सदर जरदारी ने 6 स्टेटेज नहरों की तामीर की उसूली मंजूरी दे दी है और उन पर एक साथ तेज़ रफ्तारी से काम शुरू करने के लिए वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतों और मुतल्लिका मालियाती और इंतज़ामी इदारों को भी अमल दरामद के लिए मीटिंग की मिनट जारी कर दिए गए। लेकिन अमली तौर पर हुआ यह है कि सबसे पहले चोलिस्तान कैनाल के लिए 211 अरब का बजट प्लान पेश किया गया है और ये मंसूबा जो कंपनियों को दिखाकर उनके 10-10 हज़ार एकड़ ज़मीन में 20 साल लीज पर देने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है, क्योंकि सदर जरदारी ने उनको यकीन दहानी कराई है कि अरसा एक्ट में तरामीम और दूसरी आइनी इस्लाहत और आइनी इदारों से मंजूरी में वो कलीदी किरदार अदा करेंगे, जिस पर अमल दरामद कराते हुए चोलिस्तान कैनाल के CTWP और ECNEC से गैर आइनी तौर पर मंजूरी भी ले ली गई है। तरीक़ेकार ये है कि पहले अस्करी हुकाम ने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC के साए तले सिंध की 12,60,000 एकड़ ज़रई ज़मीन समेत पाकिस्तान की 48 लाख एकड़ ज़मीन की निशानदी कर दी। अगले मरहले में ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कंपनी बनाकर सबसे पहले पंजाब की पॉलिसी बनाकर चोलिस्तान कैनाल मंसूबे पर काम शुरू कर दिया गया है, जिससे सारे सिंध और सबसे पहले कराची, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, सजावल वगैरह आबपाशी और पीने के पानी से महरूम हो जाएंगे। हमारी डिमांड से इस डेल्टा में जो थोड़ा बहुत पानी जाता है वो भी बंद हो जाएगा और इसकी वजह से आबी जीवत, मच्छरों की रोजी रोटी और मैदान पे बहुत ज़्यादा नाकारी असरात पड़ेंगे। वुमेन एक्शन फोरम दरियाए सिंध से चोलिस्तान कैनाल समेत
6 स्ट्रेटेजिक कैनाल निकालने के मंसूबे को मुकम्मल तौर पर रद्द करती है। वुमेन एक्शन फोरम 8 जुलाई 2024 को ईवान सदर में सदर जरदारी की ज़ेर सदारत ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कंपनी की मीटिंग को गैर आइनी और गैर जमहूरी करार देकर मुतालबा करती है कि जिस तरह ईवान सदर से एलामा जारी हुआ था, इसी तरह से ईवान सदर और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मुश्तरका एलामा में इन फैसलों पर अमल दरामद रोकने का सरकारी ऐलान होना चाहिए। सिंध सरकार का और सिंध असेंबली से भी वुमेन एक्शन फोरम मुतालबा करती है कि वो 8 जुलाई 2024 को ईवान सदर में होने वाले ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कंपनी के इजलास को गैर आइनी और गैर जमहूरी करार देकर वाज़ेह तौर पर इस मीटिंग में किए गए फैसलों को रद्द करने का ऐलान करें। वुमेन एक्शन फोरम मुतालबा करती है कि पानी के जितने भी फैसलों में वो CCI के ज़रिए हों, ये सारे फैसले गैर जमहूरी और गैर आइनी हैं। वुमेन एक्शन फोरम सिंध दरिया से 6 नए कैनाल निकालने के मुतल्लिक सारे फैसलों को रद्द करती है। थैंक यू ऑल। As an on behalf of Sindh Bias Academy, Zebes University, I am thankful to you, especially Dr. Sir. Thank you very much for your time and thank you very much for all. Thank you. Have a cup of tea with us. We are most welcome. Thank you, Dr. Sir. See you next time.